Good evening, everyone. I am C. Saurabh Goyal, moderator of this webinar. We are delighted to welcome you all in the webinar being organized by Committee on Commercial Laws, Economic Advisory, and NPO Cooperatives of the ICI. It's my pleasure to be a moderator in the webinar on compliances under labor laws for CAs on 12 June, being organized by the committee. In a short while, we will start this webinar. I would like to appraise you about the committee. This committee is focused to encourage chartered accountants to shape strategy and policies that unlocks economic, financial, social value while combining analytical oversight with commercial acumen. One of the core areas of this committee is to serve the multifunctional task of analysis, knowledge dissemination, inputs to regulators on policy formation, to develop and publish technical guidance, background materials for our CA members, to create awareness for professional opportunities for CAs in commercial laws, in economic advisory, and in NPO cooperatives. So, in this webinar, we have a speaker, CA Ruchi Gupta ji. I would like to introduce our speaker, CA Ruchi Gupta ji. CA Ruchi Gupta ji is a fellow ICA member having more than 16 years of experience. She is a national speaker on GST, income tax. She is also a certified soft skill trainer. She also served as a secretary and treasurer of Jaipur branch of ICI. She is also a regional council member. Today, she guides us about labor laws compliance. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you for the warm welcome and the introduction. Hello everyone. आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. So for that we are discussing today the labor laws, and I think we should thank the committee for organizing such a great sessions every time, coming up with a new topic and the new agenda and area for the CAs in practice. So every time we are learning a new topic which we can add in our practice area, and definitely we can enhance our practice with this. So today we will be talking about a few labor laws that are currently in existence, and we all should follow that. The companies or the businesses or the clients that we are working upon, they are already following it. I'm not sure how many of us are actually checking whether the laws are compliant or not, but yes, they are following it to some extent. Let us see today how many rules are there, how many laws are there, and let us also identify how much of these laws are being followed by us while we are auditing our clients, our businesses, entities, companies, everybody. Okay, so today is World Day Against Child Labor. So to begin with, I will start with Child and Adolescent Labor Act, which is against child labor. So we'll discuss this act first. Then we'll also talk about Apprentice Act, which is about training act for the trainees. And then we will talk about labor laws that are currently in existence that every company is supposed to follow. Okay, so Child and Adolescent Labor Act, the name itself suggests it is about child who is under 14 years of age and adolescent who is 14 to 18 years of age. So the act is about laws relating to them so that their rights, their duties, and their actions will be protected. There will not be any harm to them. That is why this act has come into existence. So let's understand this. This act was initially enacted in 1986, and then there are some changes in the act. An amendment came into picture in 2016, and then the name of the act got changed, and the new act is named as Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation. Both the things. What all is prohibited for the child as a labor, and what is the regulation in case you hire or you employ adolescents. And the act is basically for children who are below 14 years of age and then 14 to 18 years of age. So the children who is under 14 is known as child, and 14 to 18 is adolescent. Ideally, no employment can be done for children up to 14 years of age. So under 14 years of age, you cannot hire that child. So in case you see a child who is being hired in shops like tea stalls, or maybe local vendors, this is totally against. This is child labor. They are not allowed to be employed. 14 to 18, yes, they are allowed to be employed with some restrictions, with some regulation that we're going to discuss today. And also we already know that as per our constitution, there is RTE, right to education.
2009, which allows children of age up to 14 years for compulsory education, free education, that is RT, and that is related to this. So up to 14, they are supposed to study and educate and not to work. And from 14 to 18, they can work, they can go for a training, they can be employed with some restrictions and regulations. Okay, so child who has not completed 14 years of age, adolescent who is between 14 to 18. So any child who is from 14 to 18 cannot be employed in hazardous places as well. There are certain occupations like mineries होती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं सिगार बीड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं. इन सब इंडस्ट्रीज में भी यू कैन नॉट एम्प्लॉय adolescent who is up to 18 years of age. तो उनके लिए एज बिल्कुल अलग है. तो there are certain factories, certain industries जहाँ पे adolescent को भी हायर नहीं कर सकते. That there the limit is 18 years, but generally up to 14 years of age are called as child, and you cannot hire child under your employment. और कहाँ नहीं कर सकते? एस्टैब्लिशमेंट. एंड एस्टैब्लिशमेंट मींस एनी ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन जहाँ पे होता है, एनी प्लेस. तो मतलब कहीं पे भी नहीं कर सकते. ओके, एक्सेप्शंस इसमें भी है. कई बार आता है क्वेश्चन की ना, चाइल्ड आर्टिस्ट भी तो होते हैं. सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस कि अगर ऐसा कोई फैमिली बिजनेस है जिसको दैट इज नॉट हैजार्डस या फिर एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है और पेरेंट्स के साथ अगर बच्चा बैठता है तो वो अलाउड है, बट ही इज नॉट एम्प्लॉयड, राइट. तो वो एक अलग सिनेरियो है. Otherwise, child up to 14 years of age is not allowed to be employed. Okay. अब क्या प्रोहिबिशन है कि क्यों नहीं अलाउड होता और क्या होता है? सो नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू बी वर्क इन एनी ऑक्यूपेशन और प्रोसेस. अगर आप देखेंगे अप्रेंटाइज एक्ट या फिर हम बात करते, then also you will see that Apprentice Act में भी there is a limit of 14 years कि अगर आप अपनी कंपनी में ट्रेनी रखते हो तो भी then he has to be or she has to be from the age beginning from 15 years. So under 14 तो वहां पे भी allowed नहीं है. So either a trainee or an employee cannot be less than 14 years. So no child shall be employed. एक्सेप्शंस हैं, एज आई टोल्ड यू कि कोई ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे फैमिली के साथ वो आता है या फिर बच्चा बैठता है, वो एक्सेप्शन है. और मे बी एज आई टोल्ड यू चाइल्ड आर्टिस्ट जो होते हैं, जो स्टूडियो में या फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह में होते हैं, दोज आर एक्सेप्शन एंड फॉर देम देयर इज सेपरेट एक्ट एसोसिएटेड विद देम. सो दिस एक्ट डजंट अप्लाई टू देम. और एडोलेसेंट की अगर अगेन हम बात करें तो हैजार्डस इंडस्ट्रीज में भी 18 इयर्स तक अलाउड नहीं होता. बेसिकली ये एक्ट है ही क्यों? जस्ट टू प्रोटेक्ट चाइल्ड लेबर. एज वी नो कि लेबर की इतनी शॉर्टेज है, एम्प्लॉयमेंट कहने को फुली नहीं है, बट अगेन लेस एंड चीपर लेबर नहीं मिलती है. उसके लिए देयर आर लोकेशंस इन ऑल्सो इन इंडिया, आई नॉट टॉक अबाउट आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया एज वेल, वेयर children or maybe even kids are forced to work for the survival of the family. And बहुत सारे regulations already in place हैं, even then this kind of things are happening. However, you will see अगर आपने किसी industries के अगर आपके clients होंगे, then you will relate to it कि they specifically mention outside the factory premises या फिर बिल्कुल entry board पे that no child या no child labor is employed in the factory and no employee under the age of 18 years are employed inside the factory. मतलब ये declaration every factory has to give. and अगर आप factories act को पढ़ेंगे then there are certain kind of declaration that every factory has to give कि यहाँ पे overtime दिया जाता है, there is no child labor employed, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वाटर जो होता है वो सीवरेज सिस्टम कैसा है उसको भी होता है. बहुत सारे डिक्लेरेशंस वो देते हैं कि यहाँ पे कोई भी मतलब बहुत सारी रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए दे हैव टू गिव सम डिक्लेरेशंस एंड यू विल सी दोस डिक्लेरेशन बोर्ड्स आउटसाइड द प्रेमाइसेस इटसेल्फ दैट दे आर फुलफिलिंग द लेबर लॉज. हाउएवर इवन देन इतना सब कुछ करने के बाद भी फैक्ट्रीज एंड बिजनेसेस आर स्टिल ऑलवेज इन द एम्बिट ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट. कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं एंड दे आर ऑलवेज इन द एम्बिट. और हमेशा उन्हें डर ही रहता है कि कभी लेबर डिपार्टमेंट से कोई आ गया देन दे विल बी पेनलाइज्ड और उनको या फिर चालान हो जाएगा या फिर सीज हो जाएगा या कुछ ना कुछ रहेगा. रीजन बीइंग, and we will study this in upcoming slides, that there are so many labor laws and especially to certain industries
तो फैक्ट्रीज अगर अलग अलग तरीके के नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं तो उनके लिए तो स्पेसिफिक लॉज भी हैं. सो एक जेनरिक लॉज तो है ही, ईपीएफ, ईएसआई, इन सबके तो है ही, ग्रेजुएटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, वेजेस एक्ट है, बहुत सारे हैं. उसके अलावा भी सर्टेन काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज में खुद के भी कुछ लॉज और एक्ट्स हैं. तो इतने सारे कंप्लाइंसेस हैं रिगार्डिंग लेबर लॉज दैट even if every businesses try to be fully compliant, there are certain laws वो उन्हें छोड़ ही देते हैं या फिर नहीं फुलफिल हो पाते. That is the reason labor law is a big panic for every businessman. और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए what businessmen generally tries, they try to avoid labor laws. वो कोशिश करते हैं that they do not come in under the ambit. अगर उनके एम्प्लॉयज 10 हैं तो वो 9 शो करते हैं, so that जो कुछ एक्ट्स हैं जो at the employee set of 10 पे एप्लीकेबल होते हैं वो ना हो. अगर उनके 20 हैं तो वो 19 शो करते हैं, 18 शो करते हैं, so that some acts जो कि at the employee level of 20 एप्लीकेबल है वो उन पे ना हो. And that is the only reason, because they know that even if they are following all the laws and acts, there are certain compliances there are always skipped या मिस हो जाती हैं, and huge penalties are there from the labor department or the respective department जिनको वो fulfill नहीं कर पाते हैं. And that is the reason a businessman को कहने के लिए कि ease of doing business तो है, but still he is facing a lot of challenges, and because of that a new labor codes are coming up very soon. आप सबने सुना भी होगा that government is coming up with new labor codes. ये बहुत डिले हो चुका है 2019 से. they are in set of preparation. both the houses में अप्रूव हो चुके हैं, नोटिफाइड भी है, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन पेंडिंग है. रूल्स प्रिपरेशन आर इन ड्राफ्ट फेजेस. कुछ स्टेट्स ने बना दिए हैं, कुछ स्टेट्स बना रही हैं, और जैसे ही बनते हैं तो दिस वुड बी इम्प्लीमेंटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट द लेवल ऑफ कंप्लायंसेस वुड बी ईज्ड. अभी बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे इट वुड बी ईज्ड, एंड द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट इज टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि ताकि बिजनेसमैन विल अडॉप्ट लेबर लॉज रादर देन getting away from it and escaping from them. They will adopt labor laws and be compliant. That is the object behind it. So coming back to our act, Child Employment Act. So as I told you, under 18 के लिए कहीं कहीं allowed है and कहीं पे नहीं भी है. क्या बोलता है हमारा Adolescent Labor Act? That says that hours of work should be restricted and it applies to all. अगर हम किसी भी एम्प्लॉय की बात करते हैं तो everybody knows that 48 hours a week is the limit. उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं करवा सकते हो आप, राइट? एडोलेसेंट के लिए भी 6 hours a day से ज्यादा नहीं हो सकता. आफ्टर दैट देयर हैज टू बी अ रेस्ट, और 7 PM to 8 AM के बीच में कोई काम नहीं होगा, राइट? दिस इज फॉर द एडोलेसेंट, मतलब अप टू 18 years. एंड वीकली हॉलिडे इज मैंडेटरी, मींस वंस इन अ वीक आपका हॉलिडे होना चाहिए, मतलब 6 days कंटिन्यूअसली काम करके 7 day ऑफ होना चाहिए. Any that could be any day, not necessarily a Sunday, that could be any day. और ये रिवीजन एवरी 3 months में हो सकता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है दैट दे सेज दैट संडे इज माय वीकली ऑफ, और ये भी एक कंप्लायंस है दैट कम्स अंडर फैक्ट्रीज एक्ट. एज आई टोल्ड यू कि कुछ हर फैक्ट्रीज बाहर कुछ बैनर्स लगा के रखती है, कुछ डिस्प्ले बोर्ड्स लगा के रखती है, अंडरटेकिंग्स लगा के रखती है. उसमें से ये भी होता है कि संडे हमारा वीकली ऑफ होता है, क्योंकि उनको भी लेबर फैक्ट्रीज एक्ट में भी है कि एक हफ्ते में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए. तो कौन सा डे ऑफ होता है वो वहां लिख के रखते हैं कि संडे हमारा वीकली ऑफ रहता है, कि हर किसी एम्प्लॉय की संडे की छुट्टी होती है, क्योंकि कोई भी कॉन्टिन्यूसली 7 days वर्क नहीं करवा सकते हैं. ठीक है, तो 6 days वर्क का रहता है मेजरली, एंड द लिमिट इज 48 hours a week, कि 48 hours से ज्यादा आप काम नहीं करवा सकते. फॉर देम आल्सो इट इज फॉर एडोलेसेंट 6 hours per day. अगर हम 6 वर्किंग डेज बोलते हैं तो 6 6 36 हो गया इनके लिए, और टाइम नहीं होता. एंड देन रजिस्टर ऑफ वर्कर्स, especially for adolescent, it is mandatory to be maintained properly कि क्या काम होता है, और with their age proofs, with their records कि कौन सा काम उनसे करवाया जाता है, and with their attendance proper mandatory है to be maintained. And I would like to tell you that a lot of companies, I'm not talking about factories. Factories वालों को पता है that they have to maintain master rule, muster rule, the different kind of registers. They are preparing those registers. However, कितना accurate होता है, कितना सही है, that is a different matter. But they are preparing it to a great extent. But companies, entities, firms, it is not still structured there. These compliances are not properly being followed there. They are still not maintaining registers as per the requirements. मतलब अगर आप देखेंगे लेबर लॉज में कि क्या रिक्वायरमेंट्स है रजिस्टर मेंटेनेंस की, तो बहुत सारी है.
आपका वीकली रजिस्टर होना चाहिए, आपका अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए, मास्टर रजिस्टर होना चाहिए, मास्टर रोल होना चाहिए आपका, एंड देन वो साइन होने चाहिए डेली बेसिस पे, और टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, इन एंड आउट टाइम होना चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स. आई डोंट थिंक वी आर फॉलोइंग दिस एट ऑल. मतलब कंप्लीटली तो कोई भी नहीं कर रहा है. इन अ अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस एंटिटी बोल रही हूँ मैं. स्ट्रक्चर्ड में वी आर फॉलोइंग इट, मोस्टली फॉलोइंग इट, स्पेशली फैक्ट्रीज में तो बिकॉज उनके इंस्पेक्शंस तो बहुत फ्रिक्वेंटली आ जाते हैं, सो दे आर फॉलोइंग इट. Okay, so register workers है, that comes under section 8, and it says that proper records maintain होने चाहिए of the nature of the work and their attendance, है ना, with age proof and sign होना चाहिए. Health and safety, अगर आप adolescent hire भी करते हो, under 18 के employees रखते भी हो, then you have to give proper working conditions to them. This is particularly to ensure that they are not placed into hazardous conditions, स्पेशली उनको इनबिल्ट ना हो जाए कोई डिजीज, ऐसी कंडीशंस ना हो जिससे उनकी हेल्थ डिटोरेट हो. इसलिए ये वाला पॉइंट आया हुआ है सेक्शन 9 से. स्पेसिफिकली सेज कि एम्प्लॉय कर सकते हो अप टू 18 years बट विद रिस्ट्रिक्शन दैट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन हैज टू बी देयर, सैनिटेशन हैज टू बी देयर, वॉशरूम्स हैज टू बी देयर, और अगर कुछ देयर इज अ लिमिट कि अगर 250 एम्प्लॉइज हैं तो कैंटीन हैज टू बी देयर. तो ये इन सबके साथ ही आप एम्प्लॉय कर सकते हो. They are very, and these are very important to be maintained. I am telling you, अगर आपके कुछ भी ऐसे clients हैं, अगर आपके पास ऐसे कोई बड़ी factories हैं जहाँ पे if you see adolescents, then please tell them that it is important to maintain. It is really important. अगर आप नहीं करते हो, let us also see that employing a child means up to 14 years का रखते हो आप, तो 20,000 to 50,000 plus 6 months and 2 years imprisonment हो सकता है. So that's a big fine, and it's not about fine, it is about factory seize होना, factory shut down होना, that is the main penalty, right? And then the imprisonment. And I tell you, आपके clients will not listen to you at all, and they would say that हम पूरा maintain करते हैं. The only way to make them follow the laws and guidelines is giving them a threat of imprisonment. फाइन उनके लिए बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी सर्च भी नहीं आती है एंड बहुत जल्दी पेनल्टीज लगती भी नहीं है. बट येस, इम्प्रिजनमेंट का बता के जरूर वो मान सकते हैं आपकी, राइट? तो उनको ये इंश्योर करो कि ये बोले इम्प्रिजनमेंट इज ऑल्सो अ पनिशमेंट, तो देन ऑल्सो दे विल अग्री एंड लिसन टू यू. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट न्यू लेबर कोड्स में स्पेशली न्यू लेबर कोड्स में फाइन्स आर हेफ्टी. अभी जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं उसमें तो फाइन फिर भी कम है, पेनल्टीज कम है, इम्प्रिजन भी नहीं है, इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है बहुत सारे केसेस में. बट इन न्यू लेबर कोड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रिजनमेंट and fines and penalties are there, and that is too, it is very hefty. और फर्स्ट गलती पे ही है, मतलब इसमें तो ये होता है कि ठीक है फर्स्ट मिस्टेक है तो इतना सही है, नेक्स्ट मिस्टेक में ही होगा. उसमें तो फर्स्ट मिस्टेक पे यू आर हैविंग इम्प्रिजनमेंट, राइट? तो यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर लॉस. अभी हम शायद बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं है और बहुत ज्यादा इसको फॉलो नहीं करते हैं, बट इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू फॉलो. ओके, then now a lot of time question comes, या फिर कभी कभी लिटिगेशन आती है हमारे पास, तो ये आता है कि इसको कौन हैंडल करता है. तो लेबर इंस्पेक्टर्स हैंडल करते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, डिफरेंट लेवल के, डिफरेंट डिपार्टमेंट के, जो कि अगर यहाँ पे कोई लिटिगेशन आती है तो उसको हैंडल करते हैं. और बेसिकली दिस इज व्हाट आई वांट टू से अबाउट लेबर लॉज फॉर चाइल्ड, स्पेशली बिकॉज टुडे इज डे फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. तो आज से हम इतना बात करेंगे कि हम जहाँ पे भी हमारे क्लाइंट्स हैं जहाँ पे लेबर में एज एडोलेसेंट रखे हुए हैं, तो आज दें कि उनको 4-5 ही कंडीशंस हैं, 3-4 पेज का एक्ट है, आप पढ़ लीजिए एंड प्लीज इंश्योर कि आप वो पर्टिकुलर कंडीशंस जो उनको प्रोवाइड करी जानी चाहिए वो प्रोवाइड की जा रही हैं, और जो भी मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए वो हो रहा है. And the reason behind this is to reduce child labor, increase school enrollment, RTE Act से linked है ये, and improve child labor. That is the only objective behind it. Now ये कैसे इंश्योर किया जाए कि ये हो रहा है, प्रोटेक्शन है? So सबसे बड़ी बात है दैट फॉलो दी रजिस्टर्स. सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने जो मास्टर रजिस्टर्स होते हैं या फिर अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं, पेरोल मास्टर्स होती हैं, ये प्रॉपरली मेंटेन्ड हो. इसमें बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन या इसमें बिल्कुल भी आर्टिकुलेशन नहीं होना चाहिए. इट हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज हम कितना भी अच्छा मेंटेन कर लें, डिपार्टमेंट नोज कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो. एवरीथिंग इज बीइंग नोन बाय द डिपार्टमेंट, तो वो पकड़ ही लेगा कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आपकी गलती होगी. ठीक है, तो जहाँ पे भी आपकी एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, तो मेक श्योर दैट यू मेंटेन प्रॉपर रजिस्टर्स, प्रॉपर मास्टर्स, प्रॉपर प्रूफ्स ऑफ एज हैज टू बी देयर, अनलेस
Otherwise you will be hefty penalized. Okay. और for that also you can reach out to your labor law experts. अगर आपको लगता है कि yes there are industries जहाँ बहुत सारे employed हैं और you need guidance, to take guidance from the labor law experts, that would be really helpful. So that is it for this particular act. Let's now reach to Apprentice. This is again a very important act, Apprentice Act. बहुत सारी बीच में तो इस पर स्टडीज भी हुई एंड इस पे काफी काम भी है. I tell you, अगर if anybody is looking for enhancing the practice area, then let me just tell you, you can actually work in this area. Apprentice Act में, Apprentice Act is an act that is basically to promote trainees in the organization, right? गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रेन्ड और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग लें ताकि स्किल रहें, ताकि अच्छा प्रोडक्शन हो और अच्छा प्रोडक्ट निकले, ताकि वाले जीडीपी बढ़े, राइट? तो उसके लिए एप्रेंटाइज एक्ट होता है दैट सेज दैट यू कैन हायर एप्रेंटाइज. एप्रेंटाइज मींस इंटर्न्स मींस ट्रेनिंग्स. ओके, आप ये रखते हैं तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है. गवर्नमेंट आपको कुछ काइंड ऑफ रीइंबर्समेंट देती है इन द फॉर्म ऑफ certain payment is made reimbursed by the government if you hire apprentice. Okay, but again easily तो कुछ भी नहीं मिलता, गवर्नमेंट फ्री में तो कुछ भी नहीं देती. then you have, there are certain restrictions and then there are certain guidelines जिसके बेसिस पे आपको ये मिल सकता है. So let's talk about this act. I'm not sure how many of you are working on it, but yes, this is a great area of working. There are companies, there are factories जिसमें बहुत सारे employees होते हैं, like 200 plus employees जहाँ maintain होते हैं. They do keep apprentice because a portion of the apprentice stipend is being reimbursed by the government, and then apprentice को training करवाने के भी government sponsor करती है और government pay करती है. So we'll talk about Apprentice Act 1961 now. Basically this is to empower youth. Objective है training provide करना, and basically क्यों हम इसमें hire करते हैं? In case anybody who has studied, who is doing certain kind of study, कोई जैसे इंटेलेक्ट, कोई आर्किटेक्चर स्टडी कर रहा है या फिर कोई आईटी स्टडी कर रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर कोर्सेज कर रहे हैं, उन कोर्सेज के बाद दैट इज अ थ्योरेटिकल नॉलेज, वी नीड अ प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल. फॉर दैट यू कैन गेट इनटू आर्टिकलशिप. जैसे हमारे सी में आर्टिकलशिप होती है, इन द सेम वे अदर कोर्सेज दे आर हैविंग इंटर्नशिप और अप्रेंटाइज. So उसको हायर कर सकते हैं in the form of apprentice. So you are hiring training. Training means apprentice in the form of apprentice, provided you hire it from a portal. एक पोर्टल है जहाँ पे apprentice की लिस्टिंग होती है. अगर आप वहां से हायर करते हो, वहां पे उनको जाके स्टाइपेंड पे करते हो, वहां पे अपना एनरोलमेंट कराते हो एंटिटी का, तब आप वहां से एप्रेंटाइज जो हायर करते हो वो आप एप्रेंटाइज कहलाएगा. और आप उसको जो पेमेंट करोगे वो आप एज पर एप्रेंटाइज एक्ट करोगे. उसके अगेंस्ट आपको डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जो होता है वो थोड़ा सा रीइंबर्समेंट देता है फॉर बियरिंग देयर स्टाइपेंड. So objective is to promote training. It is very clear. It promote practical training and foster industry academic collaboration. ठीक है, अगर practical training साथ साथ उस बच्चे को मिलती रहेगी along with studies उसने कर ली है, theoretical उसके पास है, and in case he will get practical training, he will be more efficient to do work. और ये इसका objective है स्किल इंडिया के लिए. स्किल इंडिया बनाने का थॉट है कि स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कमैन जनरेट हो मोर एंड मोर. स्ट्रक्चर लर्निंग है, आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले रहे हो कि आप सीख भी रहे हो और आप कर भी रहे हो. सो इट्स अ स्ट्रक्चर्ड वे एंड इट इज मोर अप्रिशिएबल एंड मोर अडेप्टेबल, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं डेफिनेटली इज मोर. हम भी बात करते हैं ना कि दोज सी स्टूडेंट्स who have done their articleship in a serious manner, या फिर थोड़ी अच्छी फर्म से या थोड़ी ढंग की मतलब मेहनत करके उन्होंने की है, we see a difference between those articles and the articles who have actually done dummy कह सकते हो या फिर कुछ नहीं किया है उनसे. So there is a difference and we can see that difference. So basically objective भी ये है कि more skilled employees और workmen की population create हो, तो इसके लिए promote किया जाता है इसको. Skill development for apprentices, enhance employability so that they would be able to get employed easily. आज एक रीजन अनएम्प्लॉयमेंट का है स्किल इज नॉट देयर एट ऑल. एम्प्लॉइज हम रखना तो चाहते हैं बट हमें मिलते ही नहीं अच्छे, तो हम क्या करें? दैट इज द मेन कंसर्न दिस डेज. A lot of companies से हम connected रहते हैं and they say that we want to hire CAs, we want to hire CMA, CS, but the problem is the expectations they have with regards to salary that doesn't match with their skill set. And the reason behind is कि हर कोई employee तो बहुत अच्छा होना चाहता है but learning पे ध्यान नहीं देना चाहता,
right? So that is the reason this Apprentice Act has been promoted, so that जो बच्चे हैं वो early age में सीखें, grow करें, so that they will be employed easily, and it is applicable for both private and public companies. Okay, apprentice, as I told you in the beginning, a person who is undergoing apprentice training acts for that. ठीक है, apprentice training में structure भी होता है कि आपको क्या कराना, क्या सीखेगा, कौन सी फील्ड से वो है और वो क्या सीखेगा. तो अगर वो apprentice act के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग ले रहा है तो he is an apprentice. Designated और optional दो तरीके की ट्रेड्स होती हैं. Designated trades वो है, मतलब designated training, designated work entities और nature of work वो है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, और ऑप्शनल है कि वो स्पेसिफिकली बता देती है कि ये नहीं हो, ये नहीं है, इवन इफ देन वो अप्रूव्ड है टू बी एन अप्रेंटाइज. ठीक है, और अप्रेंटाइज एडवाइजर इज अगेन अ की टर्म. अप्रेंटाइज एक्ट में अप्रेंटाइज एक्ट का एडवाइजर भी होता है जो ऑफिसर अपॉइंट करता है सुपरवाइज करने के लिए कंप्लायंसेस को. क्या होता है कि हम तो कहेंगे कि हाँ ये अप्रेंटाइज है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको स्टाइपेंड मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, पर इससे रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस आते हैं उसके लिए अप्रेंटाइज एडवाइजर इज देयर हु इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, कि आप इसको ही विल मॉनिटर द एक्ट, और अगर इसमें कोई भी चैलेंजेस रहते हैं या फिर इसके डिस्प्यूट्स आते हैं इस एक्ट में, तो ही वुड बी द पर्सन हु वुड बी रेफर्ड. Okay, apprentices must be at least 14 years of age, as I mentioned you earlier as well. चाइल्ड लेबर के टाइम पे कि आप एप्रेंटाइज भी रखोगे तो मस्ट बी एटलीस्ट 14 इयर्स का एज होना चाहिए. इवन इफ आपने स्टडीज बहुत जल्दी कर ली है तो भी आपका 14 इयर्स ऑफ एज होगा, तो ही आप आ सकते हो एज एन एप्रेंटाइज. वो ही अपने आप को एक्ट में रजिस्टर या फिर इस पोर्टल में रजिस्टर करा पाता है. ठीक है, 18 फॉर हैजार्डियस है. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एप्रेंटाइज विद द एम्प्लॉयर इज मैंडेटरी. एप्रेंटाइज एक्ट नॉर्मल एक्ट नहीं है कि हमने ट्रेनिंग का एक्ट कर लिया या फिर हमने ट्रेनिंग रख लिया कंपनी में, खुद से एक्ट कर लिया. नो, खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. नो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एप्रेंटाइज एज पर एप्रेंटाइज एक्ट इज मैंडेटरी अगर उस ट्रेनी को एप्रेंटाइज बुलाना है तो. ठीक है, आप आज हम सीए फर्म्स में आर्टिकल्स रखते हैं, दैट डजंट मीन दे आर एप्रेंटाइज. दे आर ट्रेनीज बट दे आर नॉट एप्रेंटाइज एज पर एप्रेंटाइज एक्ट. दे आर एप्रेंटाइज फॉर अस बट नॉट एज पर द एक्ट. ओके, हर एप्रेंटाइज को इम्पोर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, अपने आप को रजिस्टर करना ऑनलाइन. मैंने बताया था कि apprentice.india.gov.in एक पोर्टल है, वहां जाके आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है हर एप्रेंटाइज को जिसको भी ट्रेनिंग लेनी होती है. फिर क्या होता है, आपके एम्प्लॉयज वहां जाते हैं, वहां से पिक करते हैं एप्रेंटाइज को. अगर आप हायर करते हो, अगर आप उनको में से किसी को हायर करते हो तो आपको apprentice for the company मान लिया जाता है. on the basis of that you will be treated as apprentice और आपको accordingly जो mandatory stipend है वो मिलेगी, और companies further उस stipend में से कुछ reimbursement government से ले सकती है. and training का period could be 6 to 3 years, 6 months to 3 years depending on the specific trade, कि क्या nature of work है, क्या सीखने का काम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा. स्टाइपेंड की बात करें, यू सी द स्टाइपेंड, एक बार आप स्टाइपेंड देखेंगे देन यू विल बी सरप्राइज्ड. द कॉमन बेंचमार्क्स आर 9,000 फॉर फर्स्ट ईयर, 10,000 फॉर सेकंड ईयर एंड 11,000 फॉर द थर्ड ईयर. मतलब काफी अच्छा अमाउंट है स्टाइपेंड का. तो एप्रेंटाइज रखने के लिए स्टाइपेंड आपको देनी पड़ती है, और वो स्टाइपेंड इनमें से ही होगी, आपकी इसके बाद चॉइस नहीं है. तो हम देख सकते हैं कि ये हम सीए फर्म्स में जस्ट इसके बाद अगर किसी को थॉट आया हो कि हम एप्रेंटाइज रख लें तो वो स्टाइपेंड भी देख लेते हैं कि कितनी स्टाइपेंड है इसमें. 9,000, 10,000, 11,000 पर मंथ, और अभी हम कितने अपने आर्टिकल्स को देते हैं. यू कैन कंपेयर दैट. ओके, नाउ कुछ अगेन अप्रेंटाइज एक्ट है तो कुछ एप्लीकेशंस होंगी, कुछ रेगुलेशंस होंगी. सो व्हाट आर द एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन? प्रोवाइड बेसिक एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग. एज आई टोल्ड यू, ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आपने थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले ली है, नाउ इट इज अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज. तो बेसिक ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना, एक्यूरेट ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना. क्यों मेंटेन करना? क्योंकि आपने अप्रेंटाइज रखा हुआ है जो कि आपने अप्रेंटाइज पोर्टल से हायर किया है, एंड यू विल बी आस्किंग गवर्नमेंट फॉर रीइंबर्समेंट of the stipend. So for that you have to maintain accurate trading records. Stipend आपको टाइम पे देनी पड़ेगी, and ensure safe and secure workplace for all enterprises. That is first, कि आपको अपना environment safe देना पड़ेगा. अब एप्रेंटाइज को लेके क्या जरूरतें हैं, उसको क्या चीजें मेंटेन करनी है? अटेंड ऑल scheduled training sessions diligently, कि
ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग लेने आए हो तो ट्रेनिंग लेनी भी है, दैट इज इंपॉर्टेंट. फॉलो ऑल रूल्स एंड लॉफुल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द एम्प्लॉयर, मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी थ्रू आउट द ट्रेनिंग पीरियड, दैट इज ऑब्जेक्टिव. एम्प्लॉय से यही ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपको आगे सीखना है. एम्प्लॉयर से ये ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर कि आपको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन सही से करने हैं, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर हायरिंग अप्रेंटिस हु इज अगेन, आपके लिए तो वर्कमैन ही हुआ, आपके लिए तो एम्प्लॉय हुआ, तो आपको रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन करने हैं. जब आपके अप्रेंटाइज ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है और इसका टेस्ट भी होता है. इससे पहले जब आपको अप्रेंटाइज का सर्टिफिकेट देते हो आप, तो एनसीवीटी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से आपको इसका सर्टिफिकेट मिलता है आफ्टर एग्जामिनेशन, और इसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी हो जाते हो. इट इज इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता भी है ये कि क्या पीएफ ईएसआई एप्लीकेबल हो जाएगा अगर हमने अप्रेंटाइज रख दिए हैं? तो नो, PF ESI is not applicable to them and they are not considered employees under the act. Okay, एम्प्लॉय इन द टर्म ऑफ आपको रिकॉर्ड मेंटेनेंस जरूर है, बट एक्ट के अंदर एम्प्लॉय की टर्म में नहीं आते, तो आपका जो काउंट होता है एम्प्लॉय के लिए तो उसमें नहीं कंसिडर होते हैं और उनके ऊपर लेबर लॉज भी एप्लीकेबल नहीं होते. ESI PF बोनस एक्ट डजंट अप्लाई टू देम, तो उनके लिए हमें PF वगैरह नहीं डिडक्ट करना होता. ठीक है. नाउ वाई एम्प्रेंटाइज एक्ट, भाई मैं इतनी मेहनत करूं ही क्यों? हर एंटिटी वुड से ना कि ठीक है मैं तो नॉर्मल एम्प्लॉय रख लूंगी, मुझे इतने में तो एम्प्लॉय मिल जाएगा, या फिर मैं इतना रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस वगैरह क्यों करूं? बिकॉज गवर्नमेंट इज गिविंग यू इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट इज गिविंग यू सपोर्ट टू हायर एम्प्रेंटाइज सो दैट यू विल हेल्प इंडिया, यू विल हेल्प द नेशन टू जनरेट स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट. सो नैप्स की पॉलिसी आपने सुनी होगी, नेशनल अप्रेंटाइज प्रमोशन स्कीम, जिसके तहत गवर्नमेंट कुछ रिइंबर्समेंट देती है फॉर द स्टाइपेंड दैट यू आर पेइंग टू द अप्रेंटिस. दे रिइंबर्सेस 25% ऑफ स्टाइपेंड अप टू ₹1500 पर मंथ एंड 75% फॉर बेसिक ट्रेनिंग. मतलब मैंने आपको बताया था कि आप एक तो आपको स्टाइपेंड का रिइंबर्समेंट मिलता है, दूसरा आप उनको अगर ट्रेनिंग कराते हो, स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां से ट्रेनिंग कराते हो, तो भी आपका ट्रेनिंग का खर्चा गवर्नमेंट भरती है. तो 7500 फॉर द बेसिक ट्रेनिंग गवर्नमेंट देती है अगर आप उन्हें स्किल करने में हेल्प करते हो. एस्टैब्लिशर मस्ट रजिस्टर एंड क्लेम बेनिफिट्स ऑन द पोर्टल. अगेन सब कुछ पोर्टल से होता है, कुछ खुद से नहीं होगा. टू क्लेम दिस बेनिफिट्स यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ टू दी रिस्पेक्टिव पोर्टल. एम्प्रेंटाइज पोर्टल करके है, वहां रजिस्टर करना है. नैप्स पोर्टल है, वहां रजिस्टर करना है टू क्लेम ऑल दीज बेनिफिट्स. इसी के अलावा नेशनल अप्रेंटाइज ट्रेनिंग स्कीम है, NATS जिसे बोलते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा इंजीनियर बनाना, और ऑब्जेक्टिव यही है कि अच्छा सा ट्रेन करना सो दैट यू विल हैव बेटर एम्प्लॉयमेंट इन द फ्यूचर. और इट ऑफर्स 1 year ट्रेनिंग ड्यूरेशन विद इन अ सर्टिफिकेट अपॉन कंप्लीशन. जैसे मैंने बताया था, सर्टिफिकेट मिलता है आपको, आपका टेस्ट होता है और आपको सर्टिफिकेट मिलता है, एंड इट इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो नैट्स एंड नैप स्कीम काफी फेमस है और काफी लोग इसे यूटिलाइज करते हैं, स्पेशली जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो इन्हें यूज करती हैं. नाउ किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? कैजुअल पार्ट टाइम वर्कर्स आर नॉट कवर्ड अंडर दैट. मतलब आपको एम्प्रेंटाइज जो होगा, ही इज नॉट अ कैजुअल और पार्ट टाइम वर्कर, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द एम्प्रेंटाइज. सेकंड है मेन जो है एग्जेम्पशंस, वो है एस्टैब्लिशमेंट नॉट रजिस्टर्ड एम्प्रेंटाइज फर्म कैन नॉट क्लेम बेनिफिट्स. एग्जेम्पशंस मिलेगी, लेकिन तभी अगर आपने अप्रेंटाइज पोर्टल से अप्रेंटाइज उठाया है और वहां पे आप जाके इन्फॉर्म कर रहे हो, वहां पे उसकी मार्किंग कर रहे हो, डिटेल डाल रहे हो, रजिस्टर अपलोड कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो ही मिलेगा. तो स्पेशली मतलब कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या हमारे आर्टिकल्स उसके अंदर कवर होते हैं? तो हमारा आर्टिकल CA एक्ट के अंदर, क्योंकि हम गवर्न होते हैं तो हम इसके अंदर कवर नहीं होते हैं. नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी अगर हम बात करें, आपने चलो रख ली है, स्टाइपेंड भी दे रहे हो, तो अगर नहीं कंप्लाई करते हो तो क्या होगा? देन यू हैव अ पेनल्टी ऑफ 500 पर डे फॉर फेलिंग टू एंगेज द प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. When I talk about employees, तो there is a mandatory requirement. जिन कंपनीज में एक पर्टिकुलर लिमिट है, मे बी आई थिंक 40 है, अगर आपकी कंपनी में 40 एम्प्लॉइज हैं तो उसमें से आपके 5% या 2.5%, देयर इज अ वन रेंज नंबर ऑफ, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैज टू बी एम्प्रेंटाइज. और अगर आप नहीं रखते हो, देन देयर इज अ नॉन कंप्लायंस पेनल्टी एप्लीकेबल टू यू. ओके, मतलब आपकी अगर 40 एम्प्लॉइज हैं तो आई थिंक 40 पे आपको 10 एम्प्लॉइज या 5 एम्प्लॉइज आपको एप्रेंटाइज रखने की जरूरत रहती है. तो दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑन द कंपनीज
और आप नहीं रखते हो तो आपके पास मैंडेटरी पेनल्टी लग जाती है। कंप्लायंस की हम बात करें तो कंप्लायंसेस एज आई टोल्ड यू कि कॉन्ट्रैक्ट्स मेंटेन करना, उनकी एज प्रूफ मेंटेन करना, उनकी एजुकेशन प्रूफ मेंटेन करना, क्योंकि आफ्टर पर्टिकुलर एजुकेशन दे हैव कम फॉर द अप्रेंटिस, तो उनके एजुकेशन रिकॉर्ड्स मेंटेन करना एंड देन उनके रजिस्टर्स मेंटेन करना, और असेसमेंट्स होती हैं इनकी टाइमली तो वो मेंटेन करना एंड देन उनकी सर्टिफिकेशन कराना। दीज आर ऑल द कंप्लायंस एसेंशियल्स in case you had advertise in your company. So that is it for it. This any question till now on these two acts before we proceed to the labor laws? Ma'am, we can take question at the end of session. At the end. Okay, okay. Fine. Now labor laws, a very important topic. I am not sure how many of us take this actually important. या हम में से कितने लोगों को एक्चुअली पता है कि पीएफ ईएसआई के अलावा भी लेबर लॉज होते हैं? Because whenever, so I am amongst few labor law consultants of Rajasthan, and whenever I speak to people, they say, "Oh, you do PF ESI." So let me just first tell you, labor law is much more beyond PF ESI. PF ESI is just one of the part, because we do the compliance of PF ESI, we ensure, or maybe I can say that we ensure compliances of PF ESI. That is the reason we know that labor law is about PF ESI, but there are many laws in labor laws that we should follow, and let's understand and let's evaluate ourselves कि हम इनमें से कितने follow करते हैं. Okay. n number of laws we have for labor laws, और ये आज से नहीं है, इंडिपेंडेंस के पहले के बने हुए लॉज हैं. आप कुछ के तो ईयर्स देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि बहुत ही पुराने एक्ट्स हैं. कुछ एक्ट्स जो हमारे ऊपर इमीडिएटली एप्लीकेबल होते हैं, या ऑलमोस्ट जैसे हमने जितने भी मैंने वर्किंग किए क्लाइंट्स के साथ, जो एक्ट्स मेजरली एप्लीकेबल हो जाते हैं, दोज वी आर डिस्कसिंग. And other than that also there are industry specific laws as well, acts as well. जैसे कि माइंस के लिए अलग होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अलग होता है BOCW, और उसके अलावा बीडी वर्कर्स के लिए अलग होता है, सिनेमा इंडस्ट्रीज के लिए अलग होता है. बहुत सारे एक्ट्स हैं, अलग अलग एक्ट्स हैं फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एज वेल. आज हम बात करेंगे उन एक्ट्स के बारे में जो मेजरली हमको पता होना चाहिए. एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी, आप ऑडिट करते तो सभी ऑडिट करते हैं. ऑडिट के टाइम पे डू एंश्योर देयर कंप्लायंसेस. आई एम श्योर कि ये कहीं पे मेंशन नहीं है कि हमें इन कंप्लायंसेस को इंश्योर करना है, देखना है, बट बीइंग एन ऑडिटर वी शुड बी नोइंग व्हाट ऑल इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कंपनी में क्या होना चाहिए और कंपनी क्या नहीं कर रही है. हमारी कहीं ड्यूटीज में लिखा हुआ है, नहीं लिखा, दैट इज वन मैटर, बट जो एक्ट्स वो फॉलो करने चाहिए वो फॉलो कर रही है, नहीं कर रही, ये तो हमको पता ही होना चाहिए, राइट? फॉर दैट लेबर लॉज आर रियली इंपॉर्टेंट, and labor law practice is equally much uprising day by day, क्योंकि लेबर लॉज की लिटिगेशंस बढ़ती जा रही है, स्पेशली अब इसलिए क्योंकि लेबर लॉज चेंज हो रहे हैं. नाउ फ्रॉम लेबर एक्ट्स इट इज बिकमिंग लेबर लॉ कोड्स, न्यू लेबर कोड्स, राइट? तो लेबर कोड्स बनने जा रहे हैं, एंड कोड मींस दे आर कंसोलिडेटिंग वेरियस एक्ट्स. अभी मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि व्हाई कंपनीज डू नॉट फॉलो लेबर लॉज. The reason behind is because there are numerous labor laws. There are so many labor laws that company doesn't know कि किसको कितने फॉलो करने हैं, और इतने फॉलो करने के बाद भी इंस्पेक्टर आके उसका चालान काट ही जाता है, राइट? सो for easing that out, government now has consolidated various laws together into one code. Okay, so all the wages related has been combined into one code, all the social security related has been combined into one code, all the compliance related has been combined into one code, all the dispute, industry and trade union related has been combined into one code. So government has actually consolidated the acts so that it become easier. और सबसे बड़ी बात, एग्जिस्टिंग लेबर लॉज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डेफिनेशन. आप देखेंगे जब आप सैलरी कंप्यूट करते हैं हम, या हम सैलरी का ऑडिट करते हैं, या फिर हम प्रोविजंस का ऑडिट करते हैं, लीव एनकैशमेंट का प्रोविजन किसी और सैलरी पे होता है, ग्रेचुइटी का प्रोविजन लास्ट ड्रॉन पे होता है, बोनस किसी और पे कंप्यूट होता है, हर पीएफ ये किसी और पे होता है, ईएसआई किसी और पे होता है, राइट? सो इतना कंफ्यूजिंग है दैट व्हाट इज द बेस सैलरी, भाई किस पे कंप्यूट करना है. Had there been a standard term, it becomes easier.
कि हाँ ठीक है इसको मान लो और इसी को देखते हुए सारे प्रोविजंस बना दो, राइट? बट इट इज नॉट द केस. किसी में कोई फॉर्मूला लगता है, किसी में कोई फॉर्मूला लगता है, एंड देन द बेस इज डिफरेंट. एवरी टाइम द बेस इज डिफरेंट. So this calculation is really difficult, and for that you need HR manager, HR team who can actually do HR compliances as well as they do all these listing, provisioning and all that stuff. Now, when we talk about labor laws that are currently in place, so there are a lot of, I think more than 50 तो हमारे सेंट्रल है और इतने ही हमारे स्टेट है. तो ऑलमोस्ट 100, 150, 200 के आसपास हमारे लेबर लॉज हैं दैट इज एप्लीकेबल टू अस. बट हम सबकी बात नहीं करेंगे. लेट अस टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द एक्ट्स टुडे. वेजेस एंड बोनस मैंने एक एक्ट में कंसोलिडेट करके मैं बताऊंगी आपको, बिकॉज इट ऑल रिलेट्स टू पेमेंट की सैलरी कितनी देनी है, बोनस कितना देना है, वेजेस कितनी देनी है. सोशल सिक्योरिटी यू नो वेरी वेल, पीएफ ईएसआई जो सबको ही पता है. इसके अलावा ग्रेच्युटी भी होता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होता है, दैट इज ऑल्सो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट. अगर हम वर्क प्लेस नॉर्म्स की बात करते हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट, एवरीबडी नो फैक्ट्रीज एक्ट, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, contractual labor act is very important. We can have one complete session on this particular act. It is really important. Or contractual act may I can guarantee you that every of your client must be doing some or the other mistake or maybe non-compliance. I can assure you that. बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंस ही नहीं होता एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू लेबर्स. No company is taking this kind of pain to check whether they are having the contractual license, contractor license or not. Because हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है, बहुत सारे केसेस आते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंस लेना है. रीजन बीइंग कि दैट वी आर प्रोवाइडिंग लेबर. हाउ कैन यू प्रोवाइड लेबर इफ यू आर नॉट हैविंग द लाइसेंस? क्योंकि अभी तक उनको कोई चेक नहीं कर रहा था, कोई सर्च में नहीं आए वो लोग, कहीं डिपार्टमेंट की नजर में नहीं आए. तो दे आर जस्ट सप्लाइंग द लेबर एंड दे डू नॉट हैव कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंस. एंड क्योंकि दे हैव अ काइंड ऑफ लेबर जो उन्हीं के पास है, तो कंपनीज आर आल्सो टेकिंग फ्रॉम देम. कंपनीज भी कहती है हम क्या करें, वो नहीं है उनके पास और हमें तो चाहिए, हमारा काम तो रुक नहीं सकता. सो वी नीड टू हैव द लेबर. सो हम उनको इस तरह शो कर देते हैं. देन दे डू यू नो सप्लीमेंट्री थिंग्स कि हम उनको अपना एम्प्लॉयज शो कर देते हैं. हम पीएफ हमने मेंटेन कर रखा है, हम कभी ईएसआई हम काटते हैं, सब हम डिपॉजिट करते हैं. हाउएवर ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की होती है, बट हम करते हैं क्योंकि हम उसको अपना शो करते हैं. एंड देन रीजन प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होती है दैट इज नॉट स्टेबल. वो आती है और जाती है. तो कॉन्ट्रैक्टर इतना पेन नहीं लेना चाहता क्योंकि जब उसे लेना पड़ेगा तो उसे पीएफ ईएसआई सबका काटना, डिपॉजिट कराना, मेंटेन करना, इतना काम करना पड़ेगा. तो वो भी हैरेस कर रहा है कंपनी को, सेइंग दैट वी डू नॉट हैव लाइसेंस, हम नहीं ऑपरेट हो रहे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, आपको लेना है तो लो. And the companies, because they need employees, they need labor, they hire laborers from them. So these are the non-compliances that are existing in place. And there is a scope to understand all this. There is a scope to know this. You can always, जब भी आप कंपनी की बैलेंस शीट साइन करते हो या फिर हम ऑडिट पे जाते हैं और जहां पे एम्प्लॉइज ज्यादा, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेसेस जहां पे लेट्स से 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, अगर आपके ऐसे क्लाइंट्स हैं तो एक बार, क्योंकि अब ऑडिट पीरियड शुरू होने वाला है, एक बार आप उनकी लेबर लॉ कंप्लायंसेस इस बार देख के देखना, देन यू सी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क देयर. You can always tell them कि you are not compliant with your labor laws. We can help you with that, provided you give an opportunity. Okay. So labor laws basically बने किस लिए हैं? Labor laws बने हैं to protect the rights of the employee laborers. एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हमेशा ये माना गया है कि एम्प्लॉय जो है वो एक वीकर पोजीशन में होता है क्योंकि एम्प्लॉयर तो अपनी बात मनवा ही लेता है. इट इज एम्प्लॉय हु हैज टू नेगोशिएट, हु हैज टू कॉम्प्रोमाइज. सो टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स लेबर लॉज केम इनटू पिक्चर. लेबर लॉज बने एंड इंडिया में बहुत सारे लेबर लॉज हैं एंड कहीं ना कहीं जितना पता होता है वो सब फॉलो करते ही हैं. Let's talk about few of the labor laws that are really important, and being an auditor, we should follow their compliances as well. So first is Payment of Wages Act that talks about, इसका year देखिए आप, 1936, even before independence, right? Payment of Wages Act है या Minimum Wages Act है या Payment of Bonus Act है, they all talk about कि कितना wages देना है. They talk about paying payment, right? कि salary में क्या देना है या wages में क्या देना है या कितना देना है, that it talks about that. अगर हम कुछ सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स की बात करें तो वो बात करते हैं एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी कि ठीक है आज तो काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, बट द मोमेंट ही विल स्टॉप वर्किंग, व्हाट इज द सिक्योरिटी दैट इज बीइंग गिवन बाय द कंपनी टू हिम?
एज अ सोर्स ऑफ वर्किंग देयर, या फिर हम बोले कि एज अ रिटर्न या ट्रिब्यूट ऑफ वर्किंग इन अ कंपनी, उसको क्या मिल रहा है? तो दैट इज बेसिकली दोज कॉन्ट्रीब्यूशंस that the company is giving for the employee to some or the other authority, so that जब वो रिटायर होगा या इनकैपेबल ऑफ वर्क हो जाएगा या फिर जॉबलेस हो जाएगा या फिर जब छोड़ेगा जॉब वो खुद सेल्फ वॉलंटरी रिटायरमेंट करेगा या फिर सपोज जॉब छोड़ के अपने बिजनेस में आएगा, तो उसके पास क्या एक कंसोलिडेटेड अमाउंट आएगा, दैट इज सोशल सिक्योरिटी, राइट? सिक्योरिटी, राइट? देन देयर आर सर्टेन वर्कप्लेस नॉर्म्स कि आपको अपने एम्प्लॉय को कितनी मिनिमम वर्किंग कंडीशंस देनी है, क्या वहां पे कैसा पानी होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए, वहां पे अगर मेटर्निटी या फीमेल्स एम्प्लॉयड हैं तो मेटर्निटी रूम्स होने चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 250 हैं या उससे ज्यादा तो आप कैंटीन मैंडेटरी है, और अगर आपके डबल शिफ्ट चलती है तो वहां रेस्ट रूम्स होने चाहिए सो दैट कि ब्रेक के बाद एम्प्लॉय वहां पे रेस्ट कर सके। तो दीज आर क्रच फैसिलिटी, आप तो क्रच फैसिलिटी भी ऐड हो गया है। तो दीज आर सर्टेन वर्किंग कंडीशन, इनफैक्ट मिनिमम वर्किंग कंडीशंस दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन और every factory, every industry has to give to their employees. So these are also notified by the government कि भी क्या होना चाहिए। And it also includes Shop and Establishment Act, जिसमें मैंने बताया आपको कि फैक्ट्रीज एक्ट, जिसमें कि बहुत सारी मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप चाइल्ड लेबर नहीं रख सकते। अगर आपके यहाँ पे आप यहाँ पे ग्रेचुटी एम्प्लॉय को पे करते हो, ये भी लिखा होता है बाहर बोर्ड में कि हमारे यहाँ पे ग्रेचुटी LIC फंड को दी जाती है, ये डिपॉजिट होती है। तो ऑल दिस ये कंप्लायंसेस हैं, तो वो वॉलंटरली बताते हैं कि हाँ हम इसको कंप्लाइंट है, हम इसको करते हैं। यहाँ पे वीकली ऑफ दिया जाता है, संडे को अवकाश रहता है, इस तरीके के कुछ नॉर्म्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं एज पर फैक्ट्रीज एंड शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। तो वो भी कुछ वर्कप्लेस नॉर्म्स हैं। एंड देन देयर इज वन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर प्रोवाइड करते हो देन ऑल्सो यू शुड हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए दैट यू आर एंटाइटल्ड और यू आर अलाउड टू प्रोवाइड लेबर टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। एक्चुअली क्या होता है कि हर कंपनी परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं रख सकती हमेशा फुल टाइम के लिए, कुछ क्योंकि कई कंपनीज में या कुछ फैक्ट्रीज में सीजनल वर्क होता है कि इस पर्टिकुलर 6 महीने में काम होता है, 2 महीने में काम होता है, या 2 महीने में एक्सेस काम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर रखते हैं उस पीरियड के लिए। तो जो जिनसे वो लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंस होना जरूरी है टू सप्लाई लेबर टू द मेन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो सॉल्ट निकालते हैं, तो सॉल्ट बनने की कुछ पर्टिकुलर पीरियड होता है कि जब ज्यादा धूप होती है तो ज्यादा सॉल्ट बनता है। तो जैसे गर्मी का पीरियड जो होता है तो बहुत ज्यादा सॉल्ट बनता है। जो फार्म प्रोड्यूस को प्रोसेस करती है उन इंडस्ट्रीज का सीजनल वर्क होता है कि कौन सा फार्म प्रोड्यूस करती है वो। तो ऐसे कुछ अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ये AC मैन्युफैक्चरिंग या फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, ये भी इनके भी सीजनल वर्क होते हैं। तो कुछ ऐसे पीरियड्स होते हैं बहुत ज्यादा काम होता है, इस टाइम पे आपको सीजनल वर्कर्स चाहिए होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का, देन दे नीड स्पेसिफिक पर्टिकुलर लेबर हु आर एक्सपर्टीज इन दैट काइंड ऑफ वर्क। तो उस एक्सपर्टीज भी इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो सम कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज उनको चाहिए होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के अगर आप लेबर रखते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर चाहिए एंड यू कैन हायर इट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। ये भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट इज अ बिग टास्क फॉर एवरी फैक्ट्री। मतलब फैक्ट्रीज के केस में ज्यादा स्पेशली प्रॉब्लम्स आती हैं कॉन्ट्रैक्चुअल मैनेजमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चर की भी दे हैव देयर ओन न्यूसेंसेस कि एम्प्लॉय आज आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, फिर आया 2 दिन आगे छोड़ देते हैं। तो कितने PF रजिस्ट्रेशन, अकाउंट हमेशा ज्यादा ही होता है, तो कितने तो PF रजिस्ट्रेशन करें, कितनी ESI करें, कितनी ज्यादा अपडेशंस एंड कंप्लायंसेस दे हैव रिगार्ड्स टू दिस, एंड देन द एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो इसकी प्रॉब्लम्स में फंसने से बजाय एम्प्लॉयर कहता है कि हम इससे बड़े आपसे ले लेते हैं। So you maintain all the compliances, you do all the nuisances, you handle all the nuisances, and I'll just pay you for the contractual employee. Okay? For that also there are a lot of registers maintenance, right? Even then, आपके पास contractual labor है, for that also you need to maintain certain kind of registers and records, attendance register, everything, even if you have contractual labor, correct? Now, the next other few acts that we're going to discuss today is Maternity Benefit Act, Child and Adolescent, we have already discussed. मेटर्निटी बेनिफिट पता ही है आपको, अब तो स्पेशली जब लीव्स भी बढ़ गई है मेटर्निटी लीव्स, तो दैट इज पर्टिकुलर एक्ट दैट टॉक्स अबाउट द मेटर्निटी लीव्स। एंड देन इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट दैट टॉक्स अबाउट इक्वल रेम्युनरेशन फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टिंग्विशन। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट,
जितने भी लिटिगेशंस होते हैं दैट इज ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। मैक्सिमम लिटिगेशंस अगर आते हैं तो या तो सोशल सिक्योरिटी पे आते हैं या फिर आते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पे। सोशल सिक्योरिटी में ऐसे आते हैं कि किसी ने कंपनी ने किसी का ग्रेच्युटी नहीं डिपॉजिट किया, या कंपनी डिनाइड टू पे ग्रेच्युटी, ये कंपनी डिनाइड टू पे लीव एनकैशमेंट। तो ऑल दीज या तो इस तरीके की कुछ लिटिगेशंस आती हैं, या कभी कभी कंपनीज ऐसे केसेस में ज्यादा फंसती हैं। या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बहुत ज्यादा होता है कि रिट्रेंचमेंट कर दिया, अनलॉफुल कर दिया, लॉफुल कर दिया, या फिर कोई उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, चाइल्ड लेबर हायर की है एंड दे गॉट इनटू द केस कि चाइल्ड लेबर हायर की है, हाउएवर दे हैव नॉट, या फिर की है एंड दे आर डिनाइंग द फैक्ट, और दे हैव नॉट, दे हैव मैनिपुलेटेड द रिकॉर्ड्स। सो इस तरीके के बहुत सारे लिटिगेशंस कंपनी फैक्ट्रीज में होती हैं मोस्टली। सो दोज आर under the Industrial Disputes Act and the Enterprise Act we have already discussed. Okay. I believe कि इनके बेसिक्स तो सबको पता है, बट लेट मी जस्ट रीआइटरेट क्विकली। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कि हर एम्प्लॉय को पेमेंट होनी चाहिए वेजेस की, बाय दिस डेट होनी चाहिए, मिनिमम वेजेस इतनी है, ऑल दिस टॉक्स अबाउट, एंड इट अप्लाइज टू ऑल द एम्प्लॉयज हु आर हैविंग सैलरी अप टू 24,000 पर मंथ, कि हमको 7th या 10th एक डे फिक्स होता है। आज हम भी शायद अपने एम्प्लॉयज को 7th को पे करते हैं या 10th को पे करते हैं, उसका रीजन ये भी होता है कि टीडीएस काटना होता है, राइट? So that is basically governed by the Payment of Wages Act as well. Due date जो follow होती है 7th या 10th of the next month की, because of the Wages Act होती है। TDS is one of the reason कि ठीक है TDS 7th को हम आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं, तो जब TDS ही काट लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो सैलरी पे कर दो। बट however 7th और 10th is the date जो जनरली फिक्स करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी टू कंपनी, और it applies, it is basically because of the Payment of the Wages Act. और it also talks about कि आपका payment of wages has to be authorized, has to be approved, has to be properly documented in the form of wage registers, in the form of attendance registers, in the form of wage slips. I'm not sure how many of the clients of yours कितने structured हैं, कितने unstructured है, because I know कि इतने सारे unstructured clients हैं जहाँ पे I agree कि invoicing management बहुत अच्छा है, परचेज एंड सेल बहुत अच्छा होगा उनका, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मार्केटिंग बहुत अच्छा होगा, पेरोल मैनेजमेंट इज रियली वीक, बिकॉज हम लोग बहुत सारे लिटिगेशन के केसेस देखते हैं पेरोल के, एंड वी नो दैट इतना ज्यादा पेरोल एक ग्रांटेड एरिया लिया जाता है कि करना ही क्या है, कि एम्प्लॉय है उनको पेमेंट कर देते हैं, दैट इज इट इज नॉट दैट इजी। You have to maintain records, especially for the IT companies. IT companies की litigation सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ attrition बहुत ज्यादा होता है, turnover of employees बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से employee आता है जाता है, आता है जाता है, कंपनी काटती है, नोटिस पे काटती है, ये काटती है, वो काटती है, बहुत सारे रिडक्शंस एप्लीकेबल होते हैं, और उसकी वजह से एम्प्लॉय क्या करता है, बहुत जल्दी उनके ऊपर लिटिगेशन फाइल कर देता है। अगर कोई अमाउंट नहीं दिया है, कुछ है, तो बहुत जल्दी, क्योंकि वो भी एम्प्लॉयज भी नीडर होते हैं वहां के, तो करेक्ट। तो अगर आप नहीं करते हैं तो आई टेल यू, जब नए वेज कोड्स आ जाएंगे तो आपके लिए, अगर आपके ऊपर एक्ट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं, और एक्ट्स मोस्टली 10 एम्प्लॉयज होते ही एप्लीकेबल हो जाते हैं, राइट? अगर आपके ऊपर एक्ट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं, देन यू हैव टू मेंटेन द सिस्टम ऑफ इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर्स, इशूइंग ऑफर लेटर, मेंटेनिंग देयर वेज रजिस्टर, मेंटेनिंग देयर सैलरी स्लिप्स, इशूइंग सैलरी स्लिप्स। क्या हम करते हैं? आई डोंट थिंक सो, मैं तो अभी तक नहीं करती। तो इवन दो हम लेबर लॉ कंप्लायंसेस का काम करते हैं, इवन देन, क्यों? क्योंकि हम इसको इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं है, और हमें लगता है कि फिक्स से तो जाना है इतना, दैट इज नॉट अ बिग थिंग, और ये क्या ही करेंगे जान के, और लेके भी क्या करेंगे, ठीक है? रीजन बीइंग कि हमारे पास शायद उतने स्केल का एम्प्लॉय नहीं होता कि हमें इतना सारा कंप्लायंसेस मेंटेन करना पड़े, ठीक है? बट आई टेल यू, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लेबर कोड्स, it would be mandatory to maintain registers, attendance register. Do you maintain attendance register? I don't think so. Nobody maintains. ये जरूर होता है कि ठीक है, लीव रजिस्टर हम जरूर मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमें सैलरी मैनेजमेंट करना होता है, और एम्प्लॉय को ही बोलना होता है कि इतनी छुट्टियां हो गई तो आपकी सैलरी कटेगी, हाउएवर कटेगी नहीं कटेगी, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट ये बताने के लिए, लीव रजिस्टर स्टिल भी मेंटेन। कितने लोग अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करते हैं? आई एम नॉट श्योर, एटलीस्ट मुझे लगता है सर्विस इंडस्ट्री में तो नहीं करते। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में या फैक्ट्रीज में तो फिर भी मेंटेन होती है, बट सर्विस इंडस्ट्री में तो नहीं होती। हाउएवर इट इज गोइंग टू बी मैंडेटरी, मैंडेटरी तो है ही,
नहीं होने पे कंप्लाइंसेस, इस तरीके की कंप्लाइंसेस नहीं होने पे कंप्लाइंसेस, इस तरीके की कंप्लाइंसेस नहीं होने पे भी पेनल्टीज लगने वाली है और बहुत ह्यूज लगने वाली है। ठीक है, ऑलरेडी इस पे लिखा हुआ है पेनल्टीज कैन रीच अप टू 7500 पर डिफॉल्ट, अभी एग्जिस्टिंग है ये, और फिर भी हम मेंटेन नहीं करते हैं। नए वेज कोड्स में तो पेनल्टी स्टार्ट ही 50,000 रुपए से होती है, करेक्ट? तो आई थिंक इट इज द टाइम टू सेंसिटाइज आवर क्लाइंट्स कि भाई हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू फॉलो लेबर कोड्स, इनको मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है, इट इज रियली इम्पोर्टेंट, राइट? नाउ इट हैज द टाइम हैज कम टू इन्फॉर्म द क्लाइंट्स, राइट? तो सैलरी मेंटेन करना, वेज रजिस्टर मेंटेन करना, अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना, पे स्लिप्स देना, ठीक है, फॉर्म 16 इशू करना, अभी भी जिसकी सैलरी कम होती है नहीं भी करते हैं फॉर्म 16 इशू करना, और अपॉइंटमेंट लेटर देना सबसे बड़ा, और उससे बड़ी बात टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखना। आज हम अपॉइंटमेंट लेटर फिर भी इशू करते हैं, शायद अपने सीए फॉर्म्स में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करता है तो आई थिंक 1 पेज का लेटर दे देते हैं, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसे कहाँ पे काम करना है और क्या काम करना है, उसका डेजिग्नेशन, उसका रोल और उसका सैलरी, वो भी सैलरी भी कंसोलिडेटेड इन दिस अमाउंट पर मंथ, कोई सैलरी ब्रेकअप नहीं, कुछ नहीं। आई थिंक सो हम ऐसे इशू करते हैं, बट नए वेज कोड्स में इट इज गोइंग टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, इट इज गोइंग टू बी डिटेल्ड स्ट्रक्चर कि आपके सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ब्रेकअप ऑफ द सैलरी होना चाहिए, डेज कितने वर्किंग करोगे आप, ये पूरा फॉर्मेट भी मिलेगा आपको भी, कैसे आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर क्या होना चाहिए, कैसे टर्म्स होनी चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर में। जब हम अपॉइंटमेंट लेटर की बात ही कर रहे हैं तो आई रिमेम्बर अ केस लॉ है इसके ऊपर, जिसमें देयर वाज अ डिस्प्यूट कि किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, रिट्रेंच कर दिया गया, एंड द एम्प्लॉय उसने केस किया कंपनी में दैट ही हैज अनलॉफुली रिट्रेंच्ड मी आउट ऑफ द सर्विसेज, सो द एंड बिकॉज ऑफ दैट उसे डिप्राइव कर दिया गया ग्रेचुटी से, क्योंकि ही वाज कंप्लीटिंग 5 इयर्स, क्योंकि उसे अनलॉफुल निकाल दिया गया तो उसने उसको ग्रेचुटी नहीं मिल पाया। And then there is a conclusion by High Court on this is that there was a missing terms in the appointment letter, and the company said क्योंकि इसने अपनी responsibilities और duties को fulfill नहीं किया था and he was not able to perform his duties, then he is of no use to us, and that is the reason we have removed him from the services. However, the court, जैसे जनरली मैं आपको वैसे भी बता दूं कि कोर्ट जब भी एक्शन लेता है, कुछ भी होता है, तो मोस्ट इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉयज रहते हैं डिसीजंस। तो इसमें ये हुआ कि एम्प्लॉय की टर्म्स एंड कंडीशंस के क्या काम उसकी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन ही नहीं थी, तो कंपनी कैन नॉट से कि इसने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म की कि नहीं की, क्योंकि इट वाज नॉट स्पेसिफाइड इन द अपॉइंटमेंट लेटर। सो आई एम टेलिंग यू द रोल ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर हियर। क्या हमने अपॉइंटमेंट लेटर को उस तरीके से सोचा है कि हम एम्प्लॉयमेंट देते वक्त, एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देते वक्त, क्या डू वी व्हेन थिंक ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनेरियो कि हाउ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट लेटर इज? इट इज नॉट जस्ट one paper signing and a signing between employer and employee that we are going to work together as a contractor or contractual obligation. It is a detailed structure of your salary. It is a detailed letter on your due responsibilities, duties, your rights as an employee, and your timings, work timings, your positions as well, कि आप अभी किस पोजीशन पे हायर हुए हो, नेक्स्ट पोजीशन आपको क्या मिलेगी। सो ऑल दीज थिंग्स शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द अपॉइंटमेंट लेटर, एंड आई थिंक हमें शायद पता भी नहीं है कि हाउ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट लेटर इज, एंड यू कैन सर्च ऑन गूगल वेरियस केस लॉज ऑन दिस, जो बिकॉज ऑफ द इनएप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट लेटर जो जिसके ऊपर वर्डिक्ट्स आए हैं या फिर कंक्लूजन्स हुए हैं। So I'm just telling you how appointment letter, what role appointment letters plays, and that is the reason जो नए लेबर कोड्स आए हैं उसमें अपॉइंटमेंट लेटर को एक मैंडेट किया है कि अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए और डिजाइन्ड भी ऐसा होना चाहिए, इट इज नॉट 1 पेज। ठीक है, नेक्स्ट इज मिनिमम वेजेस एक्ट। एवरीबडी आई थिंक इज अवेयर ऑफ कि फ्लोर वेजेस होती हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिमम वेजेस हर स्टेट लेवल पे डिसाइड की जाती है, करेक्ट, कि मिनिमम इतनी वेजेस होती हैं, इससे कम आप पर डे की या पर आवर की वेजेस आप एम्प्लॉय को पे नहीं कर सकते हो, उसको मेंटेन करना मैंडेटरी है। इसीलिए आप देखेंगे अगर हम कहीं कहीं जगह पे आपने देखा होगा कि रजिस्टर में कुछ और होते हैं, एक्चुअली कुछ और होती है, एंड देयर इज अ मूवी ऑन दिस एज वेल कि उसको एक्चुअली में पेमेंट कुछ और किया जाता था सैलरी का, और उसे वापस ले लिया जाता था कैश, और नेट सैलरी कुछ और होती थी, एंड दैट इज द रीजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। ओके,
कि मिनिमम वेजेस है कि इतनी वेजेस तो आपको देनी ही पड़ेगी पर आवर की, अगर आप नहीं देते तो यू आर नॉट कंप्लाइंट और आपको 10,000 से स्टार्टिंग पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाती है। हर स्टेट की अलग मिनिमम वेजेस है अपनी। आई थिंक 740 इज द फ्लोर वेज, उसके ऊपर सब अपने अपनी वेजेस डिसाइड करते हैं, करेक्ट। और ये रिवाइज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द मतलब डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द स्टेट, उसके ऊपर डिपेंड करती है ये मिनिमम वेजेस आपकी। और जैसे जैसे लाइफ स्टाइल और इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये थोड़ी बढ़ती भी जाएंगी, करेक्ट। And then Payment of Bonus Act, that is applicable to all the establishment where there are more than 20 employees. Yes, 20 employees and eligible employees. अब हम बोनस एक्ट की बात करते हैं जहां पे that it means statutory bonus, correct? There are two different kind of bonus. एक होता है statutory bonus जो statute govern करता है, which is पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। एक होता है बोनस, एनुअल बोनस, जो कंपनी अपनी मर्जी से अपने एम्प्लॉइज को डिक्लेयर करती है, देती है। सो दैट इज डिफरेंट। वो कितना भी दे सकती है, 5%, 6%, 10%, 20%, 100% भी दिए जाते हैं टू रिटेन एम्प्लॉइज। बट दिस बोनस टॉक्स अबाउट पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी बोनस। और ये अब जो एम्प्लॉइज अप टू 21,000 पर मंथ कमाते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है ये कि 8.33% मिनिमम बोनस उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वो वाला बोनस होता है। And there are, please note that there are different returns and forms filed for different acts. हर एक्ट में different return filing होती है, सबका frequency अलग है और different forms होते हैं सबके लिए कि कौन कौन से compliance के लिए कौन सा form है। Okay, let's also talk about some social security acts, क्योंकि हम जनरली इन्हीं एक्ट्स को जानते हैं कि अगर हम लेबर लॉ कंप्लाइंसेस की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं पीएफईएसआई की या फिर हम ग्रेच्युटी की बात कर रहे हैं। अगर हम ग्रेच्युटी की बात करते हैं, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग इन ग्रेच्युटी, या फिर हम कितना इंश्योर करते हैं अपनी कंपनी की ग्रेच्युटी की कंप्लाइंसेस को, बट जिन कंपनीज में 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है वहां पे ग्रेच्युटी एप्लीकेबल हो जाता है। चाहे एम्प्लॉय 5 इयर्स की सर्विस कर चुका या नहीं कर चुका, ग्रेच्युटी का प्रोविजन मैंडेटरी हो जाता है अगर आपके पास 10 एम्प्लॉइज है तो। At times, we have seen companies says that none of our employees are able to cross 5 years of service anytime. Hence, that is the reason that we are not doing gratuity ka provision. But that is not correct. Even if the average vintage of your employee is less than 5 years, even then you have to make a provision of 5 years because you do not know for now कि आपका employee कब तक रहेगा। तो अगर आपके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है, आपको ग्रेच्युटी का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज जब होता है, जब आपकी लिमिट एप्लीकेबल होती है तो आपको तो ग्रेच्युटी वैल्यूएशन एक्चुअल भी करवाना पड़ता है प्रोविजन बनाने के लिए। सो आई थिंक दीज आर द कंप्लाइंस जो शायद हम इतना प्रायोरिटी पे नहीं लेते हैं या इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। हम ये जरूर जानते हैं कि हमें पीएफ 12% काटना है और ईएसआई पे 3% का डिपॉजिट होना चाहिए। उसके अलावा शायद हम प्रॉपर्ली चेक भी नहीं करते हैं। हाउएवर, व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स या कारों की रिपोर्टिंग करते वक्त हम ये स्पेसिफाई कर देते हैं ऑल दी रेलेवेंट लॉज हैज बीन फुलफिल्ड या टेक केयर किए गए हैं, कंप्लाइंट किए गए हैं, जबकि हमने पता नहीं कितना ध्यान दिया था इन एक्ट्स पे। इनफैक्ट जब हम पीएफईएसआई का चेक भी करते हैं इन टैक्स ऑडिट 360 के टाइम पे, तो भी हम ये जरूर चेक करते हैं कि कंपनी ने कितना एक्रू किया, कितना ड्यू किया और कितना पे किया। बट डू वी एक्चुअली चेक कितना डिडक्ट किया और कितना करना चाहिए था? डू वी एक्चुअली चेक दैट? आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। इन एवरी केसेस वी चेक। हो सकता है बड़े क्लाइंट्स में चेक कर भी लेते होंगे, लेकिन छोटे क्लाइंट्स में डू वी चेक? आई डोंट थिंक सो। क्या आपने एक्चुअली में जाके कभी किसी कंपनी में देखा है कि वहां कितने एम्प्लॉइज हैं? क्या उन्होंने दिखाए? अगर 5 ही हैं तो 5 ही हैं क्या? या आपको ये सेंस तो हमें उनकी टर्नओवर, उनकी एक्टिविटीज, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, इन सब से भी आइडिया लग जाता है कि क्या इस कंपनी में 5 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है कि नहीं है। एंड मेनी ऑफ द कंपनीज आर नॉट इवन अवेयर कि उनको पीएफईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना भी है। इट इज अस हु हैज टू टेल देम, बट शायद हम भी नहीं बताते क्योंकि हमें उनके इनसाइट्स ही नहीं पता है कि उनके ऊपर उनके एम्प्लॉयज कितने हैं, पता ही नहीं है। क्योंकि हम तो उनको वी कनेक्ट विद देम एट द एंड ऑफ द ईयर जब ऑडिट का टाइम आता है। और ऑडिट का टाइम तब आता है जब पूरा साल ही निकल जाता है, और अगर वो तब तक नॉन कंप्लाइंट हो गया तो इट इज वेरी लेट टू मेक हिम कंप्लाइंट, क्योंकि पेनल्टीज इतनी ज्यादा है। तो हम जनरली ये करते हैं चलो इस साल तो छोड़ो, अगले साल देखते हैं, और अगले साल भी यही हाल होता है, तो ये जनरली मिस होता है विद
डिले ही होता जाता है एंड प्रोबेबली एक टाइम तब आता है जब डिपार्टमेंट से ही नोटिस आता है कि वी हैव ऑब्जर्व्ड कि आपके इतने एम्प्लॉइज हैं और आपने पीएफईएसआई का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है या आपने डिपॉजिट नहीं किया है। फिर हम जाते हैं और कंसल्टेंट से इसका आंसर बनवा के, क्योंकि पीएफईएसआई की लिटिगेशंस लंबी चलती हैं तो ये लंबा केस खिंचता रहता है और कई साल निकल जाते हैं उसके सोल्यूशन आने में, तो तब तक तो कंपनी का काम हो जाता है। बट आई वुड से रादर, क्योंकि द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेक एवरीबडी कंप्लायंट, इसीलिए वो नए कोड्स भी ला रहा है। चाहे अभी चाहे नए कोड्स आने के बाद, मेक श्योर दैट योर क्लाइंट्स आर कंप्लायंट टू लेबर लॉज। इट इज रियली इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अभी जितनी भी ऐसी एफडीआईज हैं या जो बाहर से इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स के जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो फंडिंग करते हैं, इन रिटर्न जो शेयर्स लेते हैं, they ensure that you are labor law compliant. The companies who are labor law compliant are preferred more than those who are not labor law compliant. Yeah, who says that these laws are not applicable to them. Companies who have taken PFESI registration, even if the contribution is nil, nil क्यों? क्योंकि उनकी मिनिमम सैलरी 15,000 है ही नहीं बेसिक, या फिर कह सकते हैं कि उनकी टोटल ग्रॉस सैलरी 21,000 है ही नहीं, तो ना पीएफ की ड्यूटी बनी ना ईएसआई की ड्यूटी बनी उनकी, राइट? निल है। इवन देन उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, सब ले रखा है, रिटर्न जारी है, दे प्रेफर्ड मोर, राइट? सो लेबर लॉ कंप्लायंस इज नो मोर गोइंग टू बी अ चॉइस, इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है? और ये तब क्योंकि अब हम स्टार्टअप का वर्ड इतना ज्यादा बढ़ गया है, एवरी आईटी कंपनी कह लो या फिर एवरी न्यू आइडिया और एवरी न्यू सेटअप is going for startup. So, and they are our clients. It is our duty to tell them ki what all compliances they need to maintain, what all compliances they need to adhere. It is our duty. They do not know. They have hired us for this. And in case we ourselves do not know, the problem is we ourselves do not know. We know that PFESI karna hai. Other than that, we do not know anything about labor laws. It is my humble request to all the chartered accountants or all the auditors जो भी है, to please एटलीस्ट बेसिक पे जरूर जाएं, स्पेशली मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पे जरूर जाएं, कोड्स को जरूर पढ़ें, लॉज को जरूर पढ़ें कि कौन सी कंपनी में कब क्या एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट, बिलीव मी, नए लेबर कोड्स आते ही a lot of litigations will come, lot of litigations will come। सबके जो भी क्योंकि जैसे ही चेंज आएगा, they will ask to file declarations that how many employees you have, what is the average salary you're paying, a lot of things। और जब ये करेंगे तो it will be very clear कि आपके पास कितने number of employees हैं। So at that time it will be very late, so it is better to do it right now। early start is much better कि आज अभी से आप प्रैक्टिस करें कि क्या लेबर लॉज आपकी कंपनी में एप्लीकेबल हो सकते हैं या है, ये बहुत जल्दी आने वाले हैं, कंसिडरिंग द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ओके, so we are on payment of gratuity act now। any establishment with 10 plus employees are bound to do provisions for gratuity। gratuity का provisions employees के लिए किया जाता है, so that once whenever they will leave after 5 years the company is supposed to pay gratuity to them। तो कंपनी के पास एकदम से बर्डन ना आ जाए, मतलब ऐसा ना हो कि नाउ दे हैव टू पे फॉर 5 years टुगेदर, सो दे डू अ प्रोविजन ईयरली बेसिस। ठीक है? तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे चलता है। मेरा इस साल का, क्योंकि मैंने इस साल एम्प्लॉय रखा, ही इज सस्टेनिंग विद मी, सो आई हैव टू मेक प्रोविजन फॉर द करंट ईयर। नेक्स्ट ईयर आई हैव टू मेक प्रोविजन फॉर दैट ईयर, नेक्स्ट ईयर आई हैव टू मेक प्रोविजन फॉर दैट ईयर, नेक्स्ट ईयर फॉर दैट ईयर, एंड देन फिफ्थ ईयर all the provisions together in case the employee leaves, consolidate and pay to the employee। इट इज नॉट द केस कि जिससे अनएम्प्लॉय जा रहा है डायरेक्टली उसकी 5 साल की ग्रेचुटी निकाली उसको दे दी। सारे सालों का बर्डन यू कैन नॉट पुट इट ऑन द फिफ्थ ईयर, अदरवाइज आप सोचो प्रॉफिट्स कितने फ्लक्चुएट हो जाएंगे उसके फिफ्थ ईयर के, क्योंकि आपने पहली प्रोविजन नहीं किया। सो दैट इज द रीजन, जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है तो माना जाता है कि हो सकता है यहाँ का एम्प्लॉय का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, 5-10 एम्प्लॉयज हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि आप साथ साथ प्रोविजन बनाए हर साल, ताकि आपकी लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए 5 years में और इकट्ठा एक जगह आके उसके ऊपर बर्डन ना आए कंपनी के पास। 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस के बाद ही ग्रेचुटी दी जाती है, दैट इज फॉर श्योर। अगर आपका एम्प्लॉय चला गया 5 साल से पहले, तो आपको उसका प्रोविजन नहीं बनाना, तो आपको किसी और में एडजस्ट करना है, हो सकता है प्रोविजन रिवर्स करना पड़ जाए। तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि हमारा तो एम्प्लॉय रहता ही नहीं रहता, तो अगर वो जाएगा तो उसका प्रोविजन हट जाएगा, राइट? आप प्रोविजन ही तो बना रहे हो, पे थोड़ी ना कर दिया।
करेक्ट। तो प्रोविजन बनेगा, अगर एम्प्लॉय सस्टेन नहीं करता है तो यू विल रिवर्स हिज प्रोविजन, लेकिन उसकी जगह कोई और भी तो आया, उसका प्रोविजन बनाना है आपको, राइट। तो प्रोविजन का फिगर रिवाइज होगा बट प्रोविजन तो हर साल बनेगा। एंड कंप्लायंसेस इंक्लूड डिस्प्लेइंग नोटिसेस एंड मेंटेनिंग फॉर्म्स। बहुत सारे फॉर्म्स हैं पूरे लेबर लॉज में, ये एक चैलेंज जरूर है, और इसी का रीजन है कि हम लेबर लॉ पे जाते ही नहीं है, काम ही नहीं करते इसमें, और एम्प्लॉय अपने क्लाइंट को भी वी डू नॉट एडवाइज हिम बिकॉज वी डू नॉट नो आवरसेल्व्स कि कौन कौन से लेबर लॉज किस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट डेफिनेटली इसको भी स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है विद द न्यू वेज कोड, बट देन इट इज अगेन एन एरिया ऑफ वर्क। हम तो काम ढूंढ रहे हैं, हम ये कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, कम है, काम नहीं है, कंप्लायंसेस कम हो रही है, बट अगेन दिस इज द एरिया वी नीड टू एंटर इनटू। हमें वी नीड टू टेल आवर क्लाइंट्स कि यू हैव टू हैव द ऑल द लेबर लॉज रजिस्ट्रेशंस, आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। यू हायर अस, आप चार्ज करो ना 10,000 20,000 रुपए महीना फॉर गिविंग लेबर लॉ कंप्लायंसेस का असिस्टेंस एडवाइजरी देने के लिए, करो आप ये, इट इज इजीली। अभी तो आप देखिए मतलब, एंड तब भी तो क्लाइंट आपका देता ही है ना, जब उसके ऊपर कोई सर्च आ जाती है, कोई इंस्पेक्टर आ जाता है, उसको भी तो 10-20 हजार रुपए देता ही है ना वो। और आपके पास तब लिटिगेशन आती है, तब तो कुछ भी करने को तैयार होता है कि आपके पीएफ की लायबिलिटी खड़ी कर दी 5 लाख की, अब इसको 2 लाख में सेटल कराओ, ये 5 लाख में, 3 लाख में कराओ, 4 लाख में कराओ, मेरे तो बनते ही नहीं थे, तब भी तो कर ही रहा है ना वो। सो व्हाई नॉट टुडे आस्क हिम टू गेट हिमसेल्फ कंप्लायंट राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट इज ईपीएफ एंड एनपी एक्ट। ईपीएफ में तब एप्लीकेबल होता है जब आपके 20 एम्प्लॉय होते हैं कम से कम, ठीक है, 20 से ऊपर एम्प्लॉय होते हैं, यू हैव द लायबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड, एंड देन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर काटेगा तो एम्प्लॉय से भी काटेगा, दोनों 12% ईच काटते हैं और डिपॉजिट करते हैं। दिस इज नॉट टेक होम सैलरी, दिस इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ फंड, ओके। तो ये आपकी सैलरी का पार्ट जरूर होता है, सीटीसी का पार्ट जरूर होता है एम्प्लॉय की, बट इट इज अ सबमिशन कि कहीं जाके डिपॉजिट हो जाता है, इन हैंड नहीं आता। एंड देन मंथली ईसीआर फाइलिंग है, तो चालान फाइलिंग होती है जो डिपॉजिट होता है जिसके थ्रू पीएफ, एंड देयर आर सर्टेन फॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं इसके। एंड अगर पेनल्टीज देखेंगे आप, तो अगर आपका डिले होता है पीएफ डिपॉजिट में या डिडक्शन में, तो आपको 500 पर डे की पेनल्टी तक इंक्लूड होती है, देन इंटरेस्ट, देन डैमेजेस, और कुछ भी डिपार्टमेंट के दिमाग में आएगा तो वो कुछ भी आपके ऊपर लागू कर देगा, राइट। देन कम्स ईएसआई। ईएसआई सबको पता है, 10 एम्प्लॉय होते ही ईएसआई एप्लीकेबल हो जाता है जनरली। जैसे ही कंपनी ईएसआई रजिस्ट्रेशन लेती है, साथ में ही वो पीएफ रजिस्ट्रेशन भी ले लेती है, ठीक है। वो कहती है चलो ले लेते हैं, साथ साथ ही ले लेते, तो दोनों कंप्लाइंस साथ ही चलती है। जनरली आपने देखा होगा कि दोनों कंप्लाइंसेस कंपनी साथ साथ ही करती है। सो एंड इट इज मोर एडवाइजेबल, क्योंकि जब 10 हो गए तो 20 होते हुए भी टाइम नहीं लगता एम्प्लॉय से। तो इट इज बेटर टू टेक ईएसआई एंड पीएफ टुगेदर and maintain the compliances together. Records almost same maintained होते हैं, कुछ सेम ही फाइलिंग हो रही है, आपका फाइल करने वाला आपका कंसल्टेंट भी एक ही होता है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप दोनों कंप्लायंसेस साथ ही कर लो, ठीक है। तो जहां भी 10 से ऊपर एम्प्लॉइज आते हैं वहां, और उसके वेजेस अप टू 21,000 होता है, तो आपको ईएसआई एप्लीकेबल हो जाता है, आपको ईएसआई डिडक्ट करना ही पड़ता है। और इसमें जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो 3.25% करता है और एम्प्लॉय 0.75% करता है, ठीक है। काफी छोटा कंट्रीब्यूशन है इसका, और ये टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी के बेसिस पे होता है। पीएफ आपका बेसिक पे होता है, अभी बेसिक पे होता है, नए लेबर कोड्स में डेफिनेशन चेंज हो जाएगी सबकी, ओके। लेकिन अभी हम अभी की बात कर रहे हैं जो इम्प्लीमेंटेड है करेक्टली। मंथली रिटर्न्स जाती हैं, चालान जाता है, देन हाफ ईयरली जाती है, देन एनुअली जाती है। और अगेन इसमें भी पेनल्टीज 5,000 से 25,000 है अगर आप इसकी कंप्लायंस नहीं करते हो तो। Then come Factories Act. One second. एक एक्ट जिससे सब डरते हैं, दैट इज फैक्ट्रीज एक्ट, क्योंकि इसकी पेनल्टीज हेफ्टी होती हैं काफी। जहां पे भी 10 एम्प्लॉइज आ जाते हैं विद पावर, मतलब यहाँ मशीनरीज हैं, या 20 एम्प्लॉइज विदाउट पावर, वहां पे फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है आपका। अगर आपके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल है तो आपको शॉप एक्ट लाइसेंस, फैक्ट्रीज लाइसेंस,
ये तो लेना ही पड़ता है। इसके अलावा आपकी रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक बड़ा टास्क है। तो अगर आप सोच रहे हो अपॉर्चुनिटी ऑफ न्यू वर्क, सो दिस इज द एरिया भाई, यहाँ पे खूब काम है। You start level of compliances and you reach out to factories nearby, you आपके clients हैं जो, या फिर आपके नए नए clients आप search कर सकते हो। And believe me, every business owner is currently not happy with the kind of record maintenance they are doing, with the kind of labor law consultancy they are getting, because they are always getting a fear of getting always threatened by the labor department कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये रिकॉर्ड नहीं है, ये डिस्प्ले नहीं है, ये हमेशा रहता है। और इसकी वजह से वो हमेशा चाहते हैं कि कोई ऐसा लेबर लॉ कंप्लाइंट का कंसल्टेंट हो जो उनकी कंप्लायंसेस को देखे। सो इन केस यू आर गुड इन फैक्ट्री एंड शॉप एक्ट, आपको अवेयर है, आप कर सकते हैं, देन रीच आउट टू योर क्लाइंट्स, दे आर एक्चुअली इन नीड बिकॉज अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस इज देयर। और इसका सोल्यूशन है गो फॉर लेबर ऑडिट्स। आप बोलो कि लेबर लॉ के ऑडिट कराओ अपनी कंपनी में एवरी 6 मंथ्स, एवरी 1 ईयर, ओके। क्योंकि जब पेनल्टी आती है ना इसकी, तो लैक्स में आती है और इकट्ठे आती है, आज नहीं आएगी, 4-5 साल बाद पीएफ डिपार्टमेंट इकट्ठे आएगा कि आपने पीएफ इतना काटा था, या इस पे काटा था, या इन एम्प्लॉइज पे नहीं काटा था, या ऐसे था वैसे था, तो आपके इतने लाखों की पेनल्टी बनती है। फिर आप उसको सेटल करा दो डिपार्टमेंट जाके, नहीं नहीं ऐसा नहीं था वैसा था, सारे रजिस्टर्स मेंटेन करते हो, पीएफ की शीट्स दिखाते हो, डिपॉजिट्स दिखाते हो, आपका सैलरी एक्सपेंस दिखाते हो, बैलेंस शीट में अलग ही होता है, एक्चुअल्स में अलग है, बैंक स्टेटमेंट में अलग ही जा रहा है, कुछ मैच नहीं हो रहा था, एंड देन यू गेट स्टक। For that, factory and shop act compliance is must, and you should educate your clients to be adherence to these acts is must. Okay. It requires maintaining attendance, leave with wages and accident registers. क्योंकि फैक्ट्री है, एक्सीडेंट होने की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, तो वहां पे लीव रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, साइन इन आउट टाइम, और वेजेस क्या पर डे है, कैसी वेजेस उनको जाती है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम पे कौन था, क्या था, ये सब चीजें प्रॉपर्ली मेंटेन होती है। अब आप देखिए फैक्ट्रीज विद 10 भी कब अप्लाई हो जाता है, जब 10 होते हैं, और ईएसआई भी 10 पे होता है। क्योंकि जनरली होता क्या है, फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयज होते हैं जिनके पे स्केल कम होता है, और जिनका पे स्केल कम होता है, अगर सपोज अंडर 21,000 होता है, तो वो सारे ईएसआई में कवर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ईएसआई में कवर होते हो तो आपको इंश्योरेंस मिलता है, जो कि ईएसआई डिपार्टमेंट से मिलता है। तो अगर आपके कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, या आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या फिर उसको इमरजेंसी आ जाती है, इलनेस आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी एड हो जाता है, तो आपको ईएसआई डिपार्टमेंट से सपोर्ट मिलता है। इसीलिए जो 10, और इसका भी 10 और उसका भी 10 रखा गया है, राइट। तो जैसे अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर हो रहे हो, तो आप साथ में ईएसआई तो ले ही लो, सो दैट आपका सोशल सिक्योरिटी की सेफ्टी हो जाए, कि कभी भी कोई अनसर्टिनिटी हो जाती है तो आपको वहां से एड मिल जाए ईएसआई डिपार्टमेंट से। तो या तो क्या करेगा वो, आपका ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराता है, या फिर वो ईएसआई हॉस्पिटल ही खोलता है। यू विल सी सर्टेन बिग एंटरप्राइजेस, एंटिटीज, जिनके खुद के ईएसआई हॉस्पिटल्स होते हैं इनसाइड द प्रेमाइसेस ओनली। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ईएसआई, उनके एम्प्लॉय बहुत ज्यादा होते हैं, और एम्प्लॉय का इंश्योरेंस का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो दे ओपन देयर ईएसआई हॉस्पिटल, जिसके अंदर उनका फ्री इलाज होता है एम्प्लॉइज का। अगर फैक्ट्रीज एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, तो आपको लीव रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, मास्टर रजिस्टर, मस्टर रोल, और बहुत सारे रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। सुनने में बहुत ज्यादा लगते हैं, बट जो मेंटेन करता आ रहा है वो सिर्फ रजिस्टर्स हैं, मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, आपको तो बस रोज रेगुलरली मेंटेन करना है, तो वो करना होता है। ठीक है, एनुअल एंड हाफ ईयरली रिटर्न्स जाती है, मैंडेटरी जाती हैं, कितने एम्प्लॉय आए, कितने गए, कब आए, कब गए, टाइम क्या था, ये किसके लिए है, दिस इज टू मेंटेन देयर आवर्स ऑफ वर्क। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ओवर यूटिलाइज कर रहे हो। अगर आपकी मल्टीपल शिफ्ट्स में चलती हैं, तो आपका एम्प्लॉय का टर्नओवर तो है ना, अलग अलग एम्प्लॉयज तो है ना, सेम एम्प्लॉयज तो नहीं कर रहे। टू इंश्योर ऑल दिस, रजिस्टर्स को मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ जब आपकी फैक्ट्रीज होती हैं, तो ये कहा जाता है कि वहां सैनिटेशन, वहां सेफ्टी, वहां ड्रिंकिंग वाटर, वेंटिलेशन, इन सब की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। अलग अलग फैसिलिटीज के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, कि आपकी अगर कंपनी में इतने एम्प्लॉयज हैं
ये फैसिलिटी होना, क्रच फैसिलिटी होना, कैंटीन फैसिलिटी होना, मेटर्निटी रूम होना, रेस्ट रूम्स होना, ये मैंडेटरी हो जाता है. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. नेक्स्ट है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जो कि आपको पता ही है कि सारे शॉप्स एंड ऑफिसेस को लेना होता है. ओपन होने की विद इन 1 मंथ आपको इसको अप्लाई करना होता है. इस पे भी सेम है कि जब आप शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में कवर हो जाते हो तो आपको वर्किंग आवर्स, लीव रिकॉर्ड्स, हॉलीडे, ओवर टाइम, मेल फीमेल कितने मेल्स है, मेल फीमेल्स है, एज क्या है उनकी, ये सब मेंटेन डेटा करना पड़ता है आपको. और इसकी भी रिटर्न एनुअल एंड बायएनुअल. तो आपने देख लिया कि कितने एक्ट्स हैं और कितनी रिटर्न्स है. सो हियर कम्स द बिग चैलेंज. सबको यही रहता है कि इतने सारी रिटर्न्स को मैनेज कैसे करें और इतने सारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करें, कैसे करें. एंड दैट इज द रीजन कि जनरली बिजनेसमैन कहता है कि इसमें लफड़ों में पड़ने से तो अच्छा है कि हम इसमें पढ़े ही ना, टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दिस. So and that to prevent all this, the new labor codes are coming up so that these records will be consolidated into one record. अब आपको 20 एक्ट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गए, 20 रिटर्न्स जाएंगी, 20 रिकॉर्ड मेंटेन होंगे, 20 ही रजिस्ट्रेशन हो गए, अब 20 ही आपके प्रोविजंस हैं या कुछ ना कुछ चीजें चलती रहेंगी कंप्लाइंस से. और आप 20 कंप्लाइंसेस करोगे तो उसकी फीस भी 20 लोगों को देनी पड़ेगी. पीएफ वाली अलग देनी, ईएसआई अलग, ग्रेच्युटी प्रोविजन किसी और से बनवा रहे हो, लीव एनकैशमेंट का कैलकुलेशन किसी और से करवा रहे हो, मिनिमम वेजेस की कंसर्निंग किसी और से ले रहे हो, लिटिगेशन में आ गए या कुछ आ गया तो वो किसी और से कर रहे हो. तो 10 चीजें ये हो गई. इसको कम करने के लिए लेबर लॉज बने गए हैं. वहां पे अब क्या होगा, वहां पे एक ही एक्ट है, एक ही कोड है, सारा पेमेंट और वेजेस रिलेटेड सब एक कोड में आ गया. सब पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, ये सब रिलेटेड एक में आ गया. सोशल सिक्योरिटी सारा एक में आ गया. ट्रेड यूनियंस वाला और शॉपिंग एक्ट वाला या ट्रेड इंडस्ट्री वाला सब एक में आ गया. और अदर सिक्योरिटी सेफ्टी इश्यूज वाला वो सब एक में आ गया. तो ऐसे करके उन्होंने कंसोलिडेट कर दिए. अब एक ही रिटर्न जाएगी, एक ही रजिस्ट्रेशन है, ये हर कोड का रजिस्ट्रेशन लिया, काम खत्म. एक रजिस्ट्रेशन में आप सब में कवर हो गए. उनकी इकट्ठे ही रिटर्न जाएगी, कंप्लायंसेस इकट्ठी है, रिटर्न स्टैंडर्डाइज हो गई, सब ऑनलाइन हो गया. अभी आधा ऑनलाइन है, आधा मैनुअल है, फिर सब ऑनलाइन हो जाएगा. तो दीज आर द चेंजेस दैट आर गोइंग टू कम अप. और ये भी एक बड़ा काम है इन चेंजेस को समझना और इनको इम्प्लीमेंट कराना. नाउ ये तो हमने बात की कुछ ऐसे एक्ट्स की जो हमारे रेगुलर बेसिस पे काम आते हैं. नाउ वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट बोलता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज प्रोवाइड करते हो 20 या उससे ज्यादा, 20 से ज्यादा, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस, सीएलआरए आपने सुना भी होगा कई बार, पीपल आस्क कि सीएलआरए को देता है क्या, दिलवाता है क्या. दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एंड रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर करते हैं अगर आप तब होता है. कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, वैसे जनरली क्वेश्चन भी पूछते हैं एंड ऑफ द डे, ठीक, पीएफईएसआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो पीएफईएसआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होती है. बट हाउएवर मेनी केसेस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फुलफिल नहीं करता है. इसलिए फाइनली जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है आपका, मतलब जिसके लिए आपने लेबर हायर की है, उसको दिए है, वो उसको फुलफिल करता है. क्योंकि नॉन कंप्लाइंट तो हो ही नहीं सकते. अगर आपके नॉर्मल एम्प्लॉय को आप पीएफ ईएसआई दे रहे हो तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को भी देनी पड़ेगी. तो या तो वो कॉन्ट्रैक्टर देगा या आप दोगे. तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की आ जाती है. हाउएवर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होती है. बट कॉन्ट्रैक्टर कहता है मैं क्यों इतना सिरदर्दी लूं, मुझे क्या पता कौन कहाँ पे कब आया है. तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करता है. किन किन कुछ केसेस में बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी, ये बड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय प्रोवाइड करते हैं, वो ये सारा काम खुद करते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आपने कभी किसी ऑडिट में ये देखा होगा कि आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, आपके क्लाइंट ने, उसके साथ उसके बिल के साथ पीछे ये डिक्लेरेशन होता है कि मैंने इन एम्प्लॉइज का, ये 7 एम्प्लॉइज मैंने आपको ड्यूरिंग द मंथ प्रोवाइड किए. इन 7 एम्प्लॉइज के पीएफ नंबर ये हैं, ईएसआई नंबर्स ये हैं, इनके पीएफ ईएसआई मैंने डिपॉजिट करा दिए हैं. ये कॉन्ट्रैक्टर बोलता है और ये उसके चालान से, राइट. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक दोज. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट द liability has been paid by the contractor. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट कितना हम चेक करते हैं, आई एम नॉट श्योर. बट कई बार आपने इनवॉइसेस के पीछे जरूर देखा होगा और आपको लगता होगा ये इसका क्या मतलब है.
द रीजन फॉर दिस इज कि कॉन्ट्रैक्टर जो है ये जस्टिफाई कर रहा है कि मैं अपनी पीएफ ईएसआई की लायबिलिटी पे ऑफ कर रहा हूँ, हेंस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पे ऑफ करने की जरूरत नहीं है, वो कर रहा है। अदरवाइज क्या होता, अगर कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट पेइंग, देन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज सपोज टू पे एंड ही इज eligible to claim it from the contractor. So that is the contractor relationship with the employer. इसमें भी वही है, बहुत सारे वेज रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारी एनुअल रिटर्न्स जो फाइल होती है, और कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस उसके लिए मैंडेटरी होता है। मैटरनिटी बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया, नाउ इट हैज बीन चेंज, आपको पता ही है। अगर आपकी कोई भी एम्प्लॉय है जो जिसने 80 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया है पास्ट 12 मंथ्स में, मतलब एक साल में 80 दिन उसने काम किया है, तो ही और शी इज एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट, राइट। 26 वीक्स ऑफ पेड लीव मिलता है फर्स्ट टू चिल्ड्रन के लिए, 12 वीक्स देयर आफ्टर, राइट। इसमें भी आपको पहले इन्फॉर्म करना होता है, कुछ फॉर्म्स फाइल करने होते हैं, उसके बाद आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। चाइल्ड एडोलेसेंट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। Equal Remuneration Act, as I told you, there cannot be any discrimination between male and female. तो Equal Remuneration Act आया, जिसमें बोला जाता है कि पे स्केल सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, इक्वल वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। However, ये आपके शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट वगैरह में है कि अगर फीमेल है तो उसके लिए सेपरेट वॉशरूम्स होने चाहिए, वो एक अलग चीज है, बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, एंड फॉर दैट इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट इज देयर। अब हम बात करते हैं कुछ पेनल्टीज की, अगर हम ये एक्ट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो। कई कई बोलते हैं कि हमारा क्लाइंट तो नहीं करता, वो ये बोलता है कि ठीक है जब आएगी पेनल्टी तो देख लेंगे, और ऐसा होता भी है, क्योंकि ये पेनल्टीज आपके ऊपर जल्दी से नहीं आती, बट जब आती है तो बहुत भारी आती है। तो अगर आप पीएफ के केस की बात करते हैं तो 500 पर डे प्लस इंटरेस्ट प्लस डैमेजेस लगते हैं, आपको पुरानी रिटर्न्स फाइल करनी ही पड़ती है, उसके अलावा आपको ये भी पे करना पड़ता है। ईएसआई के केस में इकट्ठे आता है चालान आपका कट के 5,000 से 25,000 के बीच में आता है। ग्रेचुटी के केस में बड़ा अमाउंट है 10,000 का। मेटर्निटी के केस में भी कुछ इम्प्रिजनमेंट भी है और आपके चालान भी करते हैं। चाइल्ड लेबर के केस में मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा चालान और साथ में इम्प्रिजनमेंट का भी केस है। ये तो कुछ पेनल्टीज हैं जो कि फर्स्ट पेनल्टीज है, रिपीटेटिव करने से ये आपकी डबल होती जा रही है। एंड प्लीज नोट, नए लेबर कोड्स में पेनल्टीज आपकी 50,000 से भी शुरू है, 10,000 50,000 ऐसे हैं, वहां पर डे 500 रुपए नहीं है। तो गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस दैट यू टेक दीज लेबर लॉज इन वेरी सीरियसली एंड बी कंप्लायंट विद ऑल दीज। कुछ ऐसे केसेस भी हमने नोट डाउन किए हैं जिसमें पेनल्टीज लगती हैं कंपनीज पे फॉर शॉर्टफॉल इन द कंट्रीब्यूशन। और ये मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि हम जब ऑडिट करते हैं तो हम ये तो चेक करते हैं कि पीएफ काटा था और डिपॉजिट किया और विद इन ड्यू डेट नहीं किया, यही चेक करते हैं कि सैलरी में से पीएफ डिडक्ट किया है तो वो डिपॉजिट किया है कि नहीं किया, डिपॉजिट किया है तो विद इन ड्यू डेट किया है कि नहीं किया, विद इन ड्यू डेट नहीं किया है तो इंटरेस्ट पे किया है कि नहीं किया, बस दैट इज इट, वी चेक। कुछ कुछ केसेस में ही ये भी आइडेंटिफाई होता है कि पीएफ कम काटा है, क्या हम वो चेक करते हैं? आई डोंट थिंक सो रियली। सो दिस इज आवर ड्यूटी, एक थॉरो चेक करना, एक रफ चेक करना भी इम्पोर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी कि आपके एम्प्लॉय इतने एम्प्लॉयज है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, उनका आप एक्सेल में बनाओ, साथ में उसका पीएफ 12% करता है, फ्लैट रेट है वो बनाओ, ईएसआई कितना होना चाहिए वो बनाओ, एंड देन टैली इट विद योर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर, या फिर सैलरी शीट्स में से को रिकंसाइल दोबारा करें, इट इज इम्पोर्टेंट, स्पेशली शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में तो बहुत जरूरी है। सर्विस इंडस्ट्री में इट इज प्रीटी इजियर एंड सिंपल, क्योंकि जनरली उनकी सैलरी 21,000 से कम होती नहीं है, तो ईएसआई तो लगता नहीं है। दूसरा, बेसिक भी उनकी 15,000 से ऊपर होती है, पीएफ कई केसेस में होता नहीं, अगर वॉलंटरी होता है तो भी बड़ा फ्लैट होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सैलरी स्ट्रक्चर उनका नहीं होता है, सिस्टमैटिक होता है, बहुत क्लियर होता है, और दूसरा वहां पे बड़ा सिंप्लीफाई होता है, तो इसलिए इतना दिक्कत नहीं आता है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप ये रीचेक जरूर करें कि पीएफ ईएसआई कट तो रहा है। द पीपल, द इंडस्ट्रीज हु डू नॉट हैव एचआरस, स्पेशली जो छोटी फर्म्स हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं जिनके एम्प्लॉय 10 से 20 ही है, कि 20 से 25 है, उनके पास एचआर नहीं होते, उनके ऑपरेशंस ही एचआर मैनेज कर रहे होते हैं। अगर ऐसे केसेस हैं कि उनके ऑपरेशंस भी एचआर ही मैनेज कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, you will find the discrepancies there, you will definitely find. So my suggestion is एक बार आप पेरोल का एक्सपेंडिचर को भी रीचेक करो, क्योंकि जब ये पकड़ में आता है
और पीएफ डिपार्टमेंट आपको रिकम्प्यूट करके देता है, तो उसका तो तरीका ही अलग होता है. फॉर देम सैलरी स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट. उनका पर्व्यू अलग है चेक करने का, हमारा अलग है. दे मैच इट विद योर bank statement, they match it with your provisions, they match it with your dues to salary payable, they match it with your जो आप रिपोर्ट आउट करते हो अपनी बैलेंस शीट में हर चीज को. सो इट इज बेटर कि हम एक बार अश्योरेंस दें उस फिगर को. जब हम सर्टिफाई कर रहे हैं तो हम ये भी सर्टिफाई कर रहे हैं कि हमने फिगर को रीअश्योर किया है. सो प्लीज जरूर चेक कीजिए कि कितना ड्यू है, वो डिपॉजिट टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा है. दैट इज इम्पोर्टेंट, फॉर श्योर इम्पोर्टेंट. ये आप चेक कर रहे हो क्योंकि हमें डिसअलाउंस देना है. लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी चेक करो कि क्या हमने सही तो काटा है, क्या सही अमाउंट तो डिपॉजिट हो रखा है. एडिक्वेसी को इंश्योर करना इज डेफिनेटली आवर वर्क. और उसके अलावा पीएफ नहीं हो रहा है या फिर ईएसआई किसी एम्प्लॉय का नहीं कट रहा है, 27,000 हो गया, या सैलरी रिवाइज हो गई और अभी तक कट रहा है, ये सब चीजें भी आपको इंश्योर करनी है. क्योंकि एक और भी केस है, ईएसआई तब तक ही एप्लीकेबल है जब तक 21,000 की सैलरी है. इट इज नॉट वॉलंटरी आफ्टर दैट. पीएफ आपका वॉलंटरी है. आपकी मिनिमम सैलरी बेसिक 15,000 है, तब तक तो ये एप्लीकेबल है ही है. उसके बाद आपका वॉलंटरी है. बट ईएसआई उसके बाद वॉलंटरी नहीं है. अगर आपकी सैलरी ग्रॉस सैलरी 21,000 से ऊपर हो चुकी है तो आपके ऊपर ईएसआई एप्लीकेबल नहीं है और आपको ईएसआई के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे. और ईएसआई के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली लेबर क्लास के लिए तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. आपको फ्री इलाज आपका, आपकी फैमिली का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है. आपका जब मैटरनिटी लीव पे जाते हो तो वहां से सैलरी आती है आपकी. अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको वहां से क्लेम मिलता है. तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. तो जनरली लेबर क्लास के लिए क्या जाता है कि भाई इसको ईएसआई में कवर कर दे ताकि इसका सारा पेमेंट जो होगा वो वहां से हो जाएगा. बट अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 21,000 से ज्यादा हो गई है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ईएसआई. तो आपका कहीं ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय का सैलरी तो इंक्रीज हो गया क्योंकि लेकिन एक वो फॉर्मूला चलता आ रहा है तो उसके ऊपर कट रहा है अभी भी, तो ऐसा नहीं है. सो सैलरी रिविजन के टाइम पे रीचेक करना जरूरी है. तो इन टाइम पे आके सैलरी को रीचेक करना और इसके कॉन्ट्रीब्यूशन को रीचेक करना जरूरी है. ग्रेचुटी के केस में उसका वैल्यूएशन जरूरी है अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा है तो. लीव एनकैशमेंट का प्रोविजनिंग जरूरी है. ये सब चीजें बहुत जरूरी है. आई एम नॉट श्योर हाउ मच वी आर चेकिंग, बट येस इट इज इम्पोर्टेंट एंड यू विल रियलाइज इट व्हेन द न्यू कोड्स विल बी इम्प्लीमेंटेड. नाउ अब ये तो हुआ कुछ एक्ट्स के बारे में बात. अब बात करते हैं कि कहाँ पे जाके हम थोड़ी बहुत समझ सकते हैं इनकी. अब कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हम तो नहीं करते हैं या वी आर नॉट लेबल लॉ एक्सपर्ट्स, तो उसको कैसे किया जाए. दे आर वेरी सिंपल प्लेटफॉर्म्स, यू कैन गो योरसेल्फ एंड चेक. श्रम सुविधा करके है, यूनिफाइड लेबर पोर्टल है. वहां जाके आप यू विल सी देयर एवरीथिंग अबाउट लेबर, जो लेबर लॉज के लिए है सब कुछ आपको मिल जाएगा. लेबर क्लास के सब कुछ मिल जाएगा. ईपीएफओ पोर्टल, वी ऑल नो ईपीएफ का सारा काम ईपीएफओ पोर्टल पे होता है. पीएफ का रजिस्ट्रेशन वहीं होता है, रिटर्न्स वहीं जाते हैं, यूएन क्रेडिट वहां होता है, केवाईसी वहां अपडेट होती है, कुछ वहीं पे होता है. ईएसआईसी पोर्टल में सारा ईएसआईसी वाला काम होता है. इंश्योरेंस के रजिस्टर, आपको रिटर्न्स वहां जाके फाइल करनी होती है, सब कुछ काम ईएसआईसी होता है. एडवर्टाइज पोर्टल में एज आई टोल्ड यू, अगर आपको अपना एडवर्टाइज रजिस्टर करना है, आपने एडवर्टाइज हायर किया है एज पर एडवर्टाइज एक्ट, तो आपको वहां जाके अपडेट करने होते हैं. इसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपडेट करने होते हैं, इसके अटेंडेंस शीट अपडेट करनी होती है, इसका पेमेंट मॉड्यूल अपडेट करना होता है. कॉन्ट्रैक्ट लेबर अगर आपको रख रखी है आपने तो आपको उसका सीएलआरए पोर्टल पे जाके लाइसेंसेस कॉन्ट्रैक्टर को वहां जाके अप्लाई करने होते हैं. तो दीज आर द फ्यू लिंक्स जहां जाके आप उनके बारे में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो. आपको हेल्प चाहिए तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. Otherwise, you can reach out to the respective department के personnel से भी आप connect कर सकते हो. They definitely help you on this. बेस्ट तरीका क्या है सैलरी मैनेजमेंट का, पेरोल मैनेजमेंट का, इज डिजिटाइज रजिस्टर. दैट इज द इजीएस्ट वे. मैनुअल रजिस्टर्स में 99% गलतियां होती है. सो एनकरेज योर क्लाइंट्स टू ऑटोमेट योर पेरोल वर्क. पेरोल सबसे इजीएस्ट और फॉर ग्रांटेड टास्क लिया जाता है, बट इट इज नॉट दैट इजी. बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, छोटी छोटी एप्स आ गई हैं दैट हेल्प्स यू टू मॉनिटर योर पेरोल विथ ऑल द कंप्लायंसेस. जो भी कंप्लायंसेस है उसमें इनबिल्ड होते हैं उसके फंक्शंस, उसके रूल्स, और आपका अकॉर्डिंगली पेरोल कंप्यूट हो जाता है. तो पेरोल मतलब पेरोल जो भी रजिस्टर्स आप गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है फ्रॉम यू, ऑल दीज कंप्लायंसेस आर बीइंग मेड थ्रू दीज सॉफ्टवेयर. सो आई ऑलवेज एनकरेज माई क्लाइंट जिनके भी 20 साल एम्प्लॉइज हैं, वो अपने पेरोल को थ्रू some software, through some application ही manage करें. Do not try to do it manually. Please do not do it manually. HRMS इतने सारे सॉफ्टवेयर बन गए हैं, they are very cheap.
यू कैन इंस्टॉल देम इन एट वेरी इजी कॉस्ट, और अगर आप मंथली भी जाते हो तो 2-3 हज़ार रुपए शायद पड़ता है, बस इतने की कॉस्टिंग में आप कोई भी अच्छा पेरोल का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करवा सकते हो। रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, आपको सिर्फ कस्टमाइज कराना है, यू कैन गेट इट कस्टमाइज। वन सेकेंड। हेलो, हाँ जी। सर मैं आपको 5 मिनट में कॉल करती हूँ, आई एम इन अ मीटिंग ना। ओके। नेक्स्ट इज डिस्प्ले मैंडेटरी पोस्टर्स, मिनिमम वेजेस, एंटी सेक्शुअल हैरेसमेंट, वर्किंग आवर्स। एज आई टोल्ड यू कि जितने भी फैक्ट्रीज होती हैं, दे आर सपोज टू डिस्प्ले द रजिस्टर्स, बैनर्स लगाने पड़ते हैं उनको कि हम चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय नहीं करते हैं, या फिर हमारे आवर्स 8 आवर्स की शिफ्ट है, हम डबल शिफ्ट में काम नहीं करते हैं, ये भी जो भी होते हैं। तो वेरीफाई दैट। अगर आपके क्लाइंट्स हैं जो इंडस्ट्री बेस्ड हैं, तो प्लीज गो थ्रू द लिस्ट ऑफ चेकलिस्ट दे नीड टू मेंटेन and do ask them to display their banners for that. हम आधा जो फैक्ट्रीज वाले होते हैं या फिर जो बिजनेस मैन होते हैं, उनको आधा डर तो यही होता है कि कोई सर्च ना आ जाए, कोई डिपार्टमेंट से ना आ जाए, एंड दे आर रेडी विद सम अमाउंट कि ठीक है वो आएगा तो लेके जाएगा। व्हाई when you can provide them this consultancy कि भी आप कौन कौन से compliances आपको मेंटेन करने हैं, कौन कौन से चेक डैशबोर्ड्स या कौन कौन से आपको साइन बोर्ड्स लगाने हैं, तो ask them to maintain and why to fear from the department। अगर आप सब compliant हो, रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हो, डिपॉजिट्स आप कर रहे हो, प्रोविजंस आप कर रहे हो, everything you are doing, then why are you getting scared from all these department people, from these inspectors? You don't have to. In case you are maintaining your compliance, you don't have to. And then train HR teams and conduct annual audits. HR audits, labor audits, make it mandatory to your clients. Ask your clients कि आप अपनी भी करवाओ और अपने कॉन्ट्रैक्टर्स की भी करवाओ। उनको बोलो कि आप उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स से कॉन्ट्रैक्ट करो जो लेबर लॉ कंप्लाइंट होंगे। Why to take this risk on you? कंट्रैक्टर जहां पे भी एम्प्लॉय है, आस्क देम कि आप अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलो आप लेबर लॉ ऑडिट करवा के हमारे पास आओ, एंड आस्क योर क्लाइंट्स टू गेट द लेबर लॉ ऑडिट डन। स्टार्ट तो करवाओ वहां पे, कुछ तो स्टार्ट करें। एंड ऑलवेज इश्यू अपॉइंटमेंट लेटर्स, इट्स अ गुड हैबिट। अपॉइंटमेंट लेटर आपको बहुत ज्यादा सेव करता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, एंड हमें से कुछ हो सकते हैं एम्प्लॉइज भी रहे हो कभी, एंड वी नो दैट हाउ इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट लेटर्स आर। एम्प्लॉयमेंट लेटर्स के एक एक टर्म हम पढ़ते हैं जब हम अपॉइंटमेंट लेटर साइन करते हैं, तो द रीजन बिहाइंड दिस इट ऑब्लिगेट्स यू, राइट? सो मेक अ हैबिट। अगर आपका क्लाइंट नहीं करता है, आस्क देम टू मेक अपॉइंटमेंट लेटर्स, पूरा डिटेल्ड अपॉइंटमेंट लेटर जिसमें आपका सैलरी स्ट्रक्चर, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके राइट, सब कुछ हो, टाइमिंग्स, पोजीशन, कितना प्रोबेशन पीरियड, कब रेगुलर होगी, कब परमानेंट होगी। देयर वाज अ केस स्टडी जिसपे केस मतलब एक केस लॉ है जिसमें स्पेसिफाई किया हुआ है, क्योंकि वो प्रोबेशन पीरियड पे था और उसे निकाल दिया गया, तो दिस इज नॉट रिट्रेंचमेंट और ऐसा करके भी केस लॉ है। सो अपॉइंटमेंट लेटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, और नए कोर्स में तो ये मैंडेटरी होने वाला है। सो अभी से इसको हैबिट बना लो। एंड फॉर ऑल ऑफ अस एज वेल, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, I don't think we issue a very good appointment letter to our employees. So make this in a habit कि हम appointment letters issue करें, salary slips, payroll masters maintain करें, और everything we do it. Maintain employee master registers, ESI deposits, and file annual quarterly returns, update register. The best way is to outsource the ESI PF returns अगर आप नहीं करते हो, क्योंकि बहुत छोटा काम है। छोटा इन द सेंस कि बहुत ही माइनॉरिटी में जाने का बात हो जाता है कि एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय गया, उसका डेट, उसका रिजिग्नेशन लेटर अपलोड होना, उसका उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपडेट होना, ये बहुत ज्यादा छोटी 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 चीजें मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास इन हाउस नहीं है कोई लेबर लॉ कंप्लायंसेस करने वाला, आउटसोर्स, बहुत ही कम रेट्स में आउटसोर्स होता है ये, तो आउटसोर्स इट टू द पर्सन हु इज डूइंग लेबर लॉ कंप्लायंसेस। बट ये इंश्योर जरूर करो कि आपकी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो आप फुलफिल करो, क्योंकि ये उसका काम नहीं है फिर, राइट? हमें ये लगता है कि हमने पीएफ ईएसआई दे रखा है, पीएफ ईएसआई किसी पर्सन को जो कंसल्टेंट है उसको दे रखा है, तो हमारा सारा काम हो रहा है। नहीं भाई, आपको रजिस्टर्स तो खुद मेंटेन करने हैं, रजिस्टर्स की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। वो आपका पीएफ ईएसआई डिपॉजिट चेक कर रहा है, आपकी मेंटेनेंस आपको खुद करनी है। सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू नो, और वो तभी होगी जब आपको पता होगा कि आपको मेंटेन क्या करना है। अभी तो हमको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या क्या है। सो गाइड योर टीम, गाइड योर क्लाइंट अबाउट दैट कि उन्हें क्या क्या रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं। सो बेसिकली दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। एनी क्वेश्चंस? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your insightful webinar.
And so we have received some questions from Okay. the participants, and we will take one by one. The first question is, any software suitable for CAs which can be used for managing labor laws? सी अगर हम अपने ऑफिस की बात कर रहे हैं, फिर टॉकिंग अबाउट आवर ऑफिस, तो जो आईसीआई ऑफिस मैनेजमेंट प्रैक्टिस मैनेजमेंट टूल देता है, दैट इज आल्सो वेरी गुड. अदरवाइज यू कैन गेट योर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनी ऑफ द आईटी वेंडर. बहुत कम रेट पे, बिलीव मी, बहुत कम रेट पे पड़ता है. हमने जब इम्प्लीमेंट किया अपने ऑफिस में, सो आई थिंक 1500 पर मंथ का चार्ज लेते हैं वो. दिस इज इट. एंड दे मेंटेन द एंटायर पेरोल रिकॉर्ड्स, इनबाउंड आउटबाउंड एम्प्लॉय आता है जाता है, सब डेटा मेंटेन करते हैं. दे कीप ऑन आस्किंग डेटा फ्रॉम अस, और इसी बहाने रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है. सबसे बड़ी बात है, अदरवाइज हम तो कर ही नहीं रहे हैं. एंड देन दे प्रोवाइड ऑटोमेटेड अपॉइंटमेंट लेटर्स, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस, ये सब चीजें भी वो देता है. सो आई थिंक यू कैन गेट इट कस्टमाइज्ड from any of the IT people. And in case you need a name of few softwares that are available in the market, ready-made, I can provide you that. Second question is, at the time of formation of company, registration under PF and SI is automatically done, but the company is having only 1 or 2 employees. How Correct. to do- जो वो रजिस्ट्रेशन आपका होके आ रहा है, that doesn't mandate you, that doesn't mean that you are now under the convict of PF ESI compliances. PF ESI compliances with number of employees आएंगे आपके ऊपर, not with the automatic resistance you are already having. ये रजिस्ट्रेशन इसलिए आने शुरू हो गए कि आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा. So your one of the task is done now. Once it is applicable to you, you can just get yourself registered, active करो अपना PF ESI portal पे जाके, and you can start filing returns. But getting a registration automatically doesn't bind you to file returns until you have, unless you have number of employees. Ma'am, if any company activate those PF ESI number, then what to do? Then you have to file returns. Once PF ESI is active, it can never be withdrawn. एक बार ले लिया, एम्प्लॉय एक भी बचा है तो भी एक्टिव है, आपको निल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी. सरेंडर नहीं होता है. There is no clause of surrendering PF and ESI registrations. The next question is, if an employee wants to opt out from the EPFO and his basic salary is more than 25,000, so what are the required form need to file for opting out? EPF ESI EPFO में तो 15,000 बेसिक का लिमिट चलता है. ठीक है, अगर Yes. उसमें ऑप्ट आउट होता है तो आप कर सकते हैं. इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉई ओनली. So is there any EPFO से form उसको required? करना है तो he can write a letter to his employer and he will opt him out. This is his choice. Mandatory नहीं है. The next question is, if a company has taken group insurance plan, then ESI is mandatory or not? It is mandatory. What is the question? The question is, if the company has taken group insurance plan from a private company, then is it mandatory to take ESI or not? हाँ, बिल्कुल है. अगर आपने ग्रुप प्लान ले रखा है, even then you need to take ESI registration. That is different. Group medical claim is different, right? And ESI is totally different. ESI is an act applicable to you because you have number of employees, specified number of employees, and you are complying with the requirements of the government. Group medical claim is your choice to protect your employees. That is a different add-on benefit to your employees. The next question is, contractual license non-mandatory below 50 employees. Contractual license not mandatory for below 50 employees. हाँ, हो सकता है. I need to check the limit. मैंने शायद 40 employees कहा था, तो probably 50 होगा. There may be a revision, but हाँ, at particular number of employees है जिसके ऊपर जाके आपको contractual license लेना पड़ता है. It could be 50. I need to check. The next question is, how many leaves are mandatory for service sector industry? See, leaves mandatory नहीं होती है. It is just कि आपको 48 hours a week से ज़्यादा आप किसी से काम नहीं करवा सकते. In fact, I would like to mention that in new labor codes, बहुत जल्दी 4 days a week का भी concept आने वाला है. So वहाँ पे ये आने वाला है कि आपको 48 hours a day काम करवाना है, and the number of hours per day could be 12. So you can also go for 4 days a week as a working day, right? 3 days off and 4 days working as a US culture. बहुत जल्दी आप उसमें भी आ सकते हो. So number of hours is a mandate, and then 1 week में 1 leave लेना is mandatory. कि आप 7 days continuously work नहीं करवा सकते from an employee. There has to be 1 leave in a week. After every 6 days, there has to be 1 leave. So that is a mandate. The next question for the PPT. Can we share the PPT to the participants? Yeah, definitely. I will share it with you. You can share it with the rest of the people.
The next question is, can we expect all the labor laws to be merged into one central labor law? No. So central labor laws are the ones that I'm talking about, and these all are central acts. And then there are certain specified state laws, right? So these will not be merged. They will be clubbed in by category. So all the wages related acts, there are 4 acts: payment of wages, then minimum wages, then bonus. These all will be clubbed together in the code on wages. Then there are social security acts. They will be clubbed into code on social security. Then there are certain industrial relation related acts. They will be clubbed together into some other code. So there are 4 codes that are merging 28 acts. So 28 acts that will be merged into 4 codes. Rest of the acts are still existing. The next question is, if a bonus not paid within 8 months, but paid after 8 months and up to 10th month, then what is the consequences? So consequences will be the penalty that is applicable to them, the penalty that I mentioned. However, if it is paid within the financial year, from our perspective, when we do audit, it is they are still compliant. However, penalty is still applicable. I would not say that a penalty would be immediately applicable. It could be a possibility that we are not paying penalty upfrontly, but when the department will issue a notice, then at that time you have to pay the penalty. But yes, if you're delaying the bonus, you have to pay penalty. The next question for the specific industry, which labor laws are to be complied for skilling center of employees? Which center? Skilling. Healing centers. There are specified laws for that. I will search and share that with you. And the last question, I think, can minimum bonus be added into CTC? Minimum bonus. So, Yes. as I told you, the statutory bonus that is mandatory for employees with a salary of up to 24,000, right? If any employee is getting salary more than that, statutory bonus is not mandate. But yes, it is a part of CTC if the salary comes within the range in which it is mandatory. So it is a part of CTC, or everything is a part of CTC. Even if we talk about PF, ESI, gratuity, they are also part of CTC. It is not a part of fixed CTC, but they are part of CTC. That is a cost to the company. Ultimately, company is bearing that cost. However, it is depositing the same amount to the government, but for their welfare. It is a part of CTC. Yes. Bonus is part of CTC. Variable bonus is not part of CTC, which is performance bonus or incentives. They are not part of CTC, but yes, this particular bonus is part of CTC. Thank you. And I think this is the last question. So, Factory Act is applicable on 20 employees with power and 40 employees without power. Is it amended or still under some process? So, in the webinar, we mentioned 10 and 20 employees with Yes. power, without power. But there's a member, CS Amit Ji, is saying Factory Act is applicable on 20 employees with power, 40 employees without power. Okay, so you are saying there is an amendment and there is no change in the number of employees. Again, I'll check and get back to you on that figure. Probably there could be a change. I think all the questions and answers are over. So thank you so much, ma'am. And thank you so much all the participants who have joined our webinar. And I have noticed that more than 450 participants have joined today. So I think this is I will update the changes that you mentioned. One is the mandatory requirement of Factories Act, and one was that. What was the change in the number of? Ma'am, to change. There was one. Yeah, there's a change contractual license non-mandatory. Yes, both these changes I'll update in my PPT in case there is a change from what I have mentioned, and I will share the PPT with you. I'll share my contact details as well. In case you have any issue in any of that, you can always reach out to me. But my suggestion is to please encourage your clients to get yourself registered under various labor laws and be compliant. Thank you, ma'am. And ma'am, if you have the contact details of yours, you can present over screen. What? Please come again. You can present over screen relating to your mobile number or maybe. Okay. Yeah. 1 second.
I request member take a screenshot. So we will go forward. So thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for today's session, and we will look forward to be benefiting from your knowledge in future. I would like to thank on behalf of committee as well, and special thanks to our chairman C. Abhay Chachar ji and vice chairman C. Pramod Jain ji. Thank you all the participants for the engagements. Thank you so much. Now we are officially closing our webinar. Thank you so much. Thank you, Saurabh, for wonderful hosting. And thank you to the committee members for having these kind of sessions. These are really important. And my special thanks to all the participants for such an interactive hearing and sharing all the questions. It will definitely add to the knowledge of all of us. It is really important to communicate and share questions. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. All the participants are allowed to leave the meeting. Thank you.